Welcome back to Backward Point Podcast. My name is Nazar Sayed और आज का एपिसोड उर्दू में होगा. आज का एपिसोड बहुत स्पेशल एपिसोड है. This is one that I recorded back in June 2023 with my friend Shayan. उस वक्त शायान के सब्सक्राइबर्स कोई 15-20,000 में थे. Now they've crossed 70,000. This episode was a lost episode. This has gone through a lot of stuff. ये एपिसोड एक हार्ड ड्राइव में था जो लॉस्ट हो गई थी एंड देन वी फाउंड इट अगेन एंड देन वी एडिटेड इट एंड उसकी जो फाइनल कॉपी थी वो भी डिलीट हो गई थी एंड देन द होल SSD was lost again. This has been a very, very long time coming, and my friend Shayan has been very patient with this episode. बेचारा पूछ के मर गया भाई एपिसोड नहीं आ रहा मुझे बता दो. But I am very happy that the episode is finally here. We talked a lot about the state of cricket in Pakistan back in 2023. ये एपिसोड थोड़ा डेटेड लगेगा कुछ लोगों को बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो गई हैं. वर्ल्ड कप हो गया है, एशिया कप हो गया है, एंड स्टिल आई फाउंड व्हेन आई वाज री एडिटिंग दिस एपिसोड अ फ्यू वीक्स अगो कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शयान की जर्नी stays the same. He has gone through a lot. He has seen dark days and now he's on the other side, an up and comer. It's almost like this episode has become a time capsule. You can go back and see what we thought, what our emotions were, what our opinions were at that time. And I really implore everybody to go through the end of the episode. बहुत आला stories हैं इसमें, बहुत अच्छी conversations हैं, and I'm very proud of it. And I think just for this podcast, I think we'll have to do another one with Shayan very soon. Whenever we're in Canada, whenever we're in Karachi, we'll link up with him. He also invited me to play for his team back in the day. Uski videos bhi main link kar dunga. Please check them out. And please enjoy this podcast to the fullest. Watch till the end. If you guys want to be a part of the community again, Patreon, Discord, everything is in the description below. Check them out. They really help us. Now, for Shayan Plays Cricket on the Backward Point Podcast. Enjoy. So we are here with Shayan Ahmed. SPC Shayan. What handle? Shayan Plays Cricket. Shayan Plays Cricket. Yes, I should have known this. ये मुझे research मैंने करनी यही चाहिए. सोच रहा that's the basics. नहीं तुम्हारा Twitter handle SPC Shayan है ना? ये Shayan Instagram. हाँ Instagram पे sorry. Again, second part. Second अभी या ये edit out करना पड़ेगा. अभी तो दूसरा मिनट भी नहीं शुरू हुआ. शदीद गर्मी की वजह से जो ना मेरी हालत ऐसी हो यूजर गई है. नेम हमारा बहुत बड़ा हो रहा था Instagram का, तो हमने उसे रख दिया SPC Shorts. हाँ SPC Shorts. तो तुम्हारा दो चैनल तो नहीं है YouTube पे, right? You only have that one channel. मेरे पास एक ही चैनल. Shayan Plays Cricket, obviously inspired by Can You Cricket. Can You Cricket. And Shout out to Gareth. yes. अभी वो है किधर? He's always everywhere else. यार वो फिलहाल जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो he was touring South Africa. Yeah. फिर वो गया स्पेन और क्रिकेट लेवल तो स्पेन में बहुत ही मतलब हल्का था, बट इट वाज वेरी फन टू वॉच कि स्पेन तक में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. Everywhere. It's And everywhere. I think वहाँ पे डायस्पोरा भी कम था, लोकल्स भी ज्यादा थे. हाँ. ये भी मैं नोटिस किया था. हाँ, they were like very much in and they were not playing 20 over cricket. Yeah, they're playing वो proper. बहुत बड़ा शौक था मैंने ना 40-50 ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं. मैंने कहा ओके. लेकिन उनके ग्राउंड्स काफी कूल थे यार. Especially that one ground, I don't know if it was in Spain or it was in South Africa. There was a desert के बीच में जो ग्राउंड था. वो देखी थी वाली वीडियो? It was literally like आप थर्ड चले जाओ. थर्ड के बीच में आपने green bowl of grass and like a beautiful pitch. तो वो मुझे बड़ा काफी शॉकिंग लगा, but you know I was glad to see के because I was also a Can You Cricket fan, especially on this podcast. We love everything cricket. And then you started coming up on my shorts, क्योंकि मैं shorts कभी नहीं देखता था. तो once you get sucked in, वो आपको छोड़ता नहीं है, right? And then तुम्हारी एक दो आई, मुझे क्रिकेट से ज़्यादा ना मुझे हंसी आ रही, like it was fun. हंसी तुम पे नहीं आ रही थी. आप देख रहे थर्ड मिनट में थर्ड बेइज्जती की है इसने मेरी. It was fun to watch. मतलब तुम्हारे जो बीच में फड्डे हो रहे हैं भाई, उनको देख लो, उनको संभाल लो. क्रिकेट का एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको, बहुत देसी एस्पेक्ट मिल रहा है शदीद. और मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं खुद मैं तो कनाडा में रहता हूँ, लेकिन मैं कराची में कम से कम 3-4 साल क्रिकेट खेल के गया हूँ. तो मैंने EN5 टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, मैंने कच्ची मेमन में भी खेला है, नुमाइश के ग्राउंड पे भी खेला है. Nice. तो मुझे जो ना वो बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील होता था कि यार कनाडा जाके उस तरह की क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती. Come on mate मिलता. हाँ, ये ज़्यादा मिलता है. इवन अगर देसी भी होते हैं ना, तो वहाँ पे शदीद इंग्लिश हो रही होती है. तो वो जो एक फीलिंग होती है ना,
क्या कराची में क्रिकेट खेलने की, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो मिस करता था मैं. और मुझे आई नेवर न्यू हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स कि यार व्हाट एम आई मिसिंग एग्जैक्टली. एंड देन आई स्टार्टेड वाचिंग योर कंटेंट एंड स्टार्टेड विद द शॉर्ट्स एंड देन यू गॉट मी हुक्ड ऑन द लॉन्ग फॉर्म. और अब ऐसी कोई वीडियो नहीं है तुम्हारी अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 जो अभी आई है, क्योंकि मैं कराची में इतना बिजी था, मुझे यूट्यूब खोलने का. It's okay, you don't have to Plus, explain. I get it. तुम्हारे मुल्क में मसला ये है कि कभी यूट्यूब होता है, कभी बैन हो जाता है. यार मेरा अभी 3 वीडियो पहले हाँ तकरीबन 3 हफ्ते का गैप आया. या मैं सऊदीया से वापस आया हुआ था एंड आई हैड अ वीडियो रेडी, एडिटेड, सब कुछ डन है. हाँ एक दिन हुआ, मैंने कहा बैन हुआ, अरेस्ट हुए इमरान खान. मैंने कहा अच्छा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर बीच में चला, फिर रुक गया एंड आई एम वेटिंग फॉर द वीडियो. और मैं ये सोच रहा कि जिन यूट्यूबर्स का लाइवलीहुड इस पे या जो डेली व्लॉगर्स है उनका क्या होगा. मैं तो चलो अभी स्टार्टिंग में ही हूँ ना अपनी, उनका क्या हो रहा होगा. यार वो अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट इरफान जनेजो, ही हैड अ वीडियो एडिटेड लाइंड अप, अपलोड करना था, नहीं की उसने. 3 दिन के बाद अपलोड की, थिंकिंग के अब यूट्यूब अनबैन हो गया क्योंकि कुछ लोगों का हो गया था वाकई में. कुछ एरियाज में हुआ था, लेकिन वो आपको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी. नॉट एवरीवन इज यूजिंग अ वीपीएन. या एग्जैक्टली. तो अब ये चीज़ें जो मैंने तो नोटिस भी नहीं की थी, कभी सोची भी नहीं थी. मैं खुद यहाँ पे बैठ के कैनेडियन टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरा काम भी सोशल मीडिया का ही है, पीआर एजेंसी में होता हूँ मैं. मेरा पूरा इंस्टाग्राम बंद, सब कुछ. आई वाज लाइक ब्रो, हाउ इज वन सपोज टू मेक livelihood like you were saying, like it's very impossible. But उन 3 वीडियोस के अलावा मैंने आई थिंक तुम्हारा सारा कंटेंट देखा है. मैं मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग है ऑनेस्टली. मेरा गोल यही था व्हेन आई स्टार्टेड द चैनल, कैन यू क्रिकेट को देख के, गैरत को देख के. तो मैंने उसकी एक वीडियो देखी एंड उसको क्लिक करने से पहले आई सॉ द लेंथ ऑफ द वीडियो और वो थी 20-25 मिनट. मैंने कहा यार इतना बड़ा कंटेंट कौन देखेगा. ये आप सोचते हैं वंस यू क्लिक यू गेट सक्ड इन. Yeah, और फिर totally. एक वीडियो देखी, फिर दूसरी वीडियो देखी, बिकॉज इट्स फर्स्ट पर्सन पीओवी. नहीं, हाउ डज इट फील टू बैट. एग्जैक्टली. टेप बॉल तो सब खेले होते हैं बट नॉट एवरीवन हैज द फैसिलिटी टू प्ले लेदर बॉल, हार्ड बॉल क्रिकेट, ग्रासी ग्राउंड्स में. टोटली. और उसमें ये भी चीज़ थी कि ही वाज, सो ही इज नॉट quote unquote professional, he's not playing county cricket, he's playing village cricket. So you actually get to see like deep countryside UK, कैसे कैसे ग्राउंड्स हैं उनके. 3rd लेवल डिस्ट्रिक्ट के भी इतने आला आला ग्राउंड्स, वो उसकी पूरी वाइब ही मज़े की थी. और सेम थिंग मैं तुम्हारे उस पर कहूँगा कि यू प्ले इन सच ग्राउंड्स में बहुत डीप लेवल ऑफ क्रिकेट होता है. तुम नेशनल स्टेडियम में नहीं खेलते, यू प्ले इन लाइक द ग्रास रूट लेवल्स ऑफ कराची क्रिकेट. एंड आई लव दैट क्योंकि असगर अली शाह स्टेडियम मैंने सिर्फ सुना है, मैंने कभी खेला नहीं है. और तुम्हारे वीडियो की बदौलत मैं अब कोई 3 मैच खेल चुका हूँ उधर, बिकॉज ऑफ हाउ मच इट्स लाइक engrossing plus the POV. At the same time तुम विकेट कीपर भी हो, या right? So you just are relentless. मैं सब आप मुझे स्पिन कराते हुए भी देख रहे होंगे. देखा मैंने, है ना. तुमने आई थिंक अपने दोस्त को दे दिया था कैमरा, को दे दिया था हमने और तुमने कैमरा. खड़ाखट ओवर्स भी डाले. हाँ, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है कराची क्रिकेट का. और मैंने फिर अपने दोस्तों को भी दिखाया. एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो तुम्हें एक छोटे शहर कनाडा में तुम्हें वायरल तो मैं करा ही दूंगा. ठीक है, ये मेरा अलमिया है. और लोगों को ये पसंद आया क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर ऑफ द कैमरा भी मैंने बोला, योर पर्सनैलिटी इज वेरी लाइकेबल यार. वही अर्ली इरफान जुनेजो वाइब्स आती है मुझे. हो सकता है अर्ली इरफान जुनेजो वाइब्स आती है मुझे. वेरी रिलेटेबल, वेरी लाइकेबल. एंड like I just want to know how it all started, like तुम्हारी origin story क्या है, because I don't think a lot of people know. I was shocked to know a few things that you told me. So tell me how it all began. कहाँ से तुम आए हुए हो, कहाँ से पढ़े हुए हो. हमारी यूनिवर्सिटी डेज में तो हम थे फुल जर्नल ना, हमारे अंदर वो था. कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ना ही जर्नलिस्ट KU. और वो भी लाइक मैंने जो 4 साल का होता है इनका प्रोग्राम, वो भी मैंने पूरा नहीं किया. मैंने डिग्री के लिए 3rd ईयर में अप्लाई करा. डिग्री देने में उन्हें थोड़ी देर हो रही. हमने कहा कोई मसला नहीं है, आप डिग्री अपने पास रखें, आप फ्री हो हम फ्री हो तो किसी वक्त मिल के डिग्री निकलवा लेंगे. वो डिग्री अभी तक आई नहीं है, मैं रोज़ घर में बातें सुनता हूँ. तो 3rd ईयर में थे और गोल यही था भाई जर्नलिस्ट बनना है. और बैक ऑफ द माइंड ये था कि भाई पैसे कमाने. अब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो पता चला भाई अगर पैसे बनाने तो ये तो सही रूट नहीं था, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा. फिर कहीं से पता चला कि फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट वे. हमने कहा सही, हम फ्रीलांसिंग में गए. स्पोर्ट्स में MMA, UFC, बॉक्सिंग ये सब कवर करा मैंने. आई मेड लाइक कंसिडरेबली अच्छा पैसे बनाए एज कम्पेयर टू द 9 to 5 जॉब्स. अब डॉलर के मजे लग गए. ये बड़ा कम काम में जो 8 आवर की तो जॉब नहीं होती ना, 2 घंटा ट्रायल वगैरह, तो आपका आधा दिन चला गया. हमने कहा फ्रीलांसिंग करते हैं. अब इसमें पता चला कि यार इसमें भी अच्छी जॉब्स हैं जो कि 4-5 घंटे की अच्छी सेल्स में आपको UK, US, कनाडा में मिल जाएंगी. जो कि ऐसा लगता नहीं, यहाँ भी बहुत लोगों को पता नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू एक्वायर दैट स्किल. 1-2 इंटरनेशनल कोर्स करे एंड आई गॉट अ जॉब कि 2-3 घंटे दिन में देने और $1,000, $2,000, $3,000 वो दे देंगे.
मैंने कहा ये तो गुड है, तो हम सेल्स में एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट स्लैश अपॉइंटमेंट सेटर मैं घुस गए। हमने 8 महीने 10 महीने 1 साल की। गुड। फिर हमें कैन यू क्रिकेट टकरा गए। अच्छा, क्रिकेट का एक बहुत पहले से था, लाइक अ नॉर्मल देसी कराची बॉय, लाइक कराची बॉर्न एंड रेस, जितने कराची बॉय हो सकते हैं हम उतने थे। टेप बॉल क्रिकेट खेली और मैट्रिक तक खेली। उसके बाद आई डोंट नो इफ यू नो, लेकिन मैट्रिक में वो स्कूल और फिर एकेडमी और फिर कॉलेज हो गया। फिर कॉलेज तो कोई जाते नहीं था क्योंकि हम गवर्नमेंट में थे। गवर्नमेंट में थे, फिर एकेडमी और फिर वो 5-6 साल, फिर यूनिवर्सिटी और फिर जॉब। और सिंस आई एम द किस एकेडमी में थे तुम क्रिकेट की? क्रिकेट में नहीं, एकेडमी की बात नहीं कर रहा मैं। तो फिर सर कोचिंग कोचिंग हाँ सॉरी, मुझे और देसी लैंग्वेज मैं ओ लेवल्स का छोकरा हूं ना, तो मेरा थोड़ा सा मसला ये वाले ना हमारा ये है कि हम अब आए हो कभी तुम देसी के साथ। एकेडमी नहीं गए ना हम ट्यूशन सेंटर जाते थे डिफेंस के। अच्छा, तो एकेडमी वो बोल रहे थे तुम? वो वाली एकेडमी सर, क्रिकेट मुझे एकेडमी वगैरह का तो ख्वाब ही था ना। अच्छा। अब मैं था भी घर का बड़ा, हाँ, अरे और अब्बू भी नहीं थे, मुबारक हो। तो हम पे जरा मोरल, फाइनेंशियल, फिजिकल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। यार तुम्हारी एकदम से कंधे ना मैंने फील करना शुरू कर दिया कर दिए? एज एल्डेस्ट एज वेल। अच्छा भाई जी। शदीद डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और ये मुझे पता है मेरा भाई देखेगा, हु इज आल्सो माय आल्सो को-होस्ट। वो भी है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी फील नहीं हो सकती है जो एक बड़े भाई को होती हैं। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ सेम यार। और तो कहाँ पे थे हम? हमारे इंटरप्ट करने से पहले कहाँ पे सॉरी तुम अपनी आप बीती सुना रहे थे कि तुम एकेडमी में, क्रिकेट एकेडमी नहीं, हाँ, कोचिंग में, और फिर हम यूनिवर्सिटी में आए, ये सब हुआ। तो फिर एकदम से हमने कहा भाई यार ये रुक जाओ। अच्छा जी। तो फिर हमने कहा कि यार अब क्रिकेट भी खेलनी है। फिर थोड़ा थोड़ा खेला, फिर हमारी सम्मा में जॉब हो गई। हाँ, उसके बारे में बताओ यार, वो कैसे यार थी? नाम मेंशन हो सकता, मसला तो नहीं है? मुझे तो कोई स्पॉन्सर नहीं करता भाई। अच्छा। समा को स्पॉन्सर करना तो कर ले। बट आपका तो जर्नलिस्ट बैठा है पहले मेरे पास। 1-2 न्यूज रूम्स में हुई जॉब, उसका हम समर डिजिटल में आ गए। शाउट आउट टू माय अमेजिंग बॉस माहिम। उसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ पे हम वो थे, बोला एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील नहीं होता, हाँ। सोशल मीडिया डेस्क को एक लड़का चाहिए, जाओ शायद वहाँ जाओ। हाँ। फिर न्यूज़ डेस्क को, फिर स्पोर्ट्स डेस्क को। तो हम ऐसे इधर उधर जाके कोई बात नहीं। मेरे दिमाग में एक था पैसे बनाने, यार तो सारी स्किल सीखनी है, कोई मसला नहीं है, सीखने का रोज मिलता है। तो स्पोर्ट्स डेस्क में गए तो मैं देख रहा हूँ कि हैदर अली और फ़खर जो हैं खेल रहे हैं, सामने ना LED लगा हुआ है, एंड आई हैड टू मेक न्यूज़ वगैरह। तो मैं देख रहा हूँ फ़खर मारा, ही इज आल्सो लेफ्टी लाइक मी ना। आई एम लाइक यार मैं भी तो खेल सकता हूँ ऐसे क्लासिक ग्राउंड में, मे बी नॉट एट PSL, हाँ, मैं भी खेल सकता हूँ ये वो। तो वहाँ से एक आहिस्ता आहिस्ता वो स्पार्क जो है रिवाइव हुआ, जो था क्रिकेट का शौक तो हमेशा से बहुत था। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा था हुआ। फिर ये वो एरिया था जब मैं फ्रीलांसिंग में आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरा फ्रीडम हल्के हल्के वापस आ रहा था। देर केम अ पॉइंट मैंने टोटली जॉब छोड़ी, मैं फ्रीलांसिंग में आया, मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। मैं उस टाइम पे वो नहीं लड़के होते यार, नो 9 to 5, आई बिलीव इन एस्केपिंग द मैट्रिक्स। मेरा भी ये सीन था। तो एस्केपिंग द मैट्रिक्स वाले हम अपने फेज में थे, और उससे हम निकले, फिर हमने उसमें आए, फिर कैन यू क्रिकेट वाले टकरा गए भाई। उनकी वीडियोस देखी, पूरा दिन देख रहे हैं हम। हमने कहा यार ये क्या हो गया। और मैंने कहा ये उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कैमरे का नाम भी गोप्रो है उसके पास, ये भी नहीं पता था। मैं ऐसे सोचता था इसने मोबाइल लगाया हुआ है हेलमेट पे, क्या लगाया हुआ है इसने हेलमेट पे, कैसे आ रहा है। बस बहुत मजा आता था कि बॉल आ रहा है, खेल रहे हैं, और फर्स्ट पर्सन POV मिल रहा है बैटिंग का, कीपिंग का। Also, Gareth also plays with some really good cricketers. He like plays with Jayasuriya Jayawardene, के- not that Jayawardene. P Jayawardene. Yeah, P. Jayawardene के जो साथ कि खेला उसने. he has played some tests for Sri Lanka. Yes. And like it's fun to watch him play on that era as well. तो तुमने कब notice किया कि यार this is something that you could also do? पहले तो मैं कैमरा शाय था बहुत ज़्यादा। लाइक ऐसा नहीं है कि लोग सामने हो तो बोल नहीं पाऊंगा या कैमरा सामने होगा, बट आई जस्ट अवॉइडेड। मैंने कहा नहीं आना, बस है ही नहीं कैमरे पे, तो मैंने कहा यार अगर मैं कर भी दूंगा तो 25 लोग, अंपायर 30 लोग हों, उनके सामने में मोबाइल उठा के कैमरा हेलमेट पे रख के ना, मेरा वैसे ही कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, बैटिंग क्या करूंगा। हाँ, तो मैंने कहा यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, लोग हंस देंगे, मजाक उड़ा देंगे, मैं आउट होता रहूंगा, ये बोल देंगे भाई ये वीडियो बनाने आया व्लॉगर है, इसको क्रिकेट नहीं आता। बस कोई बात नहीं, करते हैं। मैंने कैमरा खरीदा, किसी से OLX पे गया, मैंने देखा है GoPro 7। हाँ OLX भाई, हम देसियों की फर्स्ट चीज तो वही ना, शॉप्स पे तो नया महंगा मिलेगा। तो जो बजट बन रहा था वो जरा ज्यादा हो रहा था, 10-11 GoPro हीरो का। हमने कहा 7 लेना है, ये बजट में आ रहा है। शॉप पे गया तो वो भी महंगा मिल रहा। हमने कहा OLX पे वेट करेंगे पूरा हफ्ता, कोई तो लगाएगा। तो किसी ने लगाया, हम गए, हम लेकर आ गए। सही है, हेलमेट लगाया यार, विद इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग मुझे बहुत सस्ता मिल गया, एटलीस्ट
38 का पड़ा था मुझे, सही है, that's pretty good. बहुत ज़्यादा सस्ता। अभी आपको 7 तो मिलेगा नहीं कराची में, 8 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जाहिर है 7 थोड़ी सी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई और ये उनके लिए लेसन है जो कहते हैं ना हमारे पास फ़ोन पुराना है या कैमरा लेना है, तो आपका भाई आईफोन 7 से कर रहा है और ये रहा आईफोन 7 आईफोन 7 से कर रहा है और GoPro Hero 7 है। और मैं इसको ये बोल रहा था कि आई डिडंट नो, मुझे लगा कि तुमने अपने मामू चाचा किसी से मंगवा के कोई टाइट किस्म का तुमने GoPro डाला हुआ है और कोई 12-13 आईफोन तुम यूज़ कर ही रहे हो, क्योंकि आई कुड नेवर टेल कि इट्स एन iPhone 7। आईफोन का भी कमाल है यार, अच्छा फ़ोन है, अच्छा कैमरा है। और मेरा iPhone 14 पड़ा हुआ है इधर, और ये जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो अभी तक PTA अप्रूव्ड ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं मुझे 2 लाख रुपए ये दो। भी एक अलग मसला है ना यहाँ का। हाँ, तुमने सही किया। और हाँ। सबसे अच्छी बात तुम्हारी ये लगी मुझे कि तुमने यू डिडंट लेट योर तुम कह रहे हो ना, इक्विपमेंट को तुमने बहाना बना के छोड़ा नहीं कि यार है ही नहीं मेरे पास सामान, ऐसे ही यू कंटिन्यूड, दैट इज अमेजिंग। हाँ, मैंने कहा यार स्टार्ट तो करते हैं, For कुछ sure. चीज़ें आएंगी, पैसे आएंगे, रिसोर्सेज आएंगे तो अपग्रेड कर Yeah. लेंगे। अभी मेरे अराउंड 26,000 से ऊपर हो गए हैं। जी। अपग्रेड अभी तक नहीं किया, मेरे दोस्त वगैरह कह सही रहे है। हैं अब अपग्रेड कर ले मैंने कहा कर लेंगे। आई थिंक मतलब तुम्हारा सही है। लाइक मैं ट्रेजेक्टरी देखता हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की, और वो यही होती है कि दे स्टार्ट विद व्हाटएवर दे हैव, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता पहला आप GoPro अपग्रेड करोगे, फिर तुम अपना फ़ोन अपग्रेड करोगे, नेक्स्ट थिंग यू शूटिंग ऑन अ DSLR, लाइक दैट्स ऑल इट इज, राइट। एक स्टेप के बाद अगर तुम बोलोगे कि 0 सब्सक्राइबर के साथ मुझे तुम A7S4 ला के दो, वो फिर जाती हो जाएगी। प्राइमरी चीज मैं समझ गया था, ये है कि इक्विपमेंट नहीं है, मैं और जो मेरे बॉयज हैं उनको कंफर्टेबल करना है। Exactly. वो कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि हमें बॉयज का पता है कैमरा रखो वो सारे चुप यूं देख रहे हैं, यार कैमरा तो बंद कर यार, फिर बात करें। स्पेशली कराची के बॉयज के अंदर जो ना, जो मैंने नोटिस किया, एक शाइनेस है। अच्छा कैमरा बंद कर दोगे तो उनसे ज्यादा लाउड और कॉन्फिडेंट छोकरा कोई है ही नहीं। यार उनसे फनी, हाँ। के लड़कों से फनी और एक्चुअली स्किलफुल, और ये मतलब बेस्ट बैंटर है। कराची के लड़के की जो एक कचेरी होती है ना दोस्तों की, हाँ उसके अंदर जो स्टैंड अप हो रहा होता है, हाँ, वो कोई नेक्स्ट लेवल ही होता है। नेक्स्ट लेवल है। और आप हंस के पागल हो जाते हो। मैं कराची अपने दोस्तों की ये चीज़ मिस करता हूँ। अब तो साथ बड़े बड़े हो गए हैं, कोई कहाँ लग गया, कोई कहाँ लग गया, बट व्हेन आई यूज्ड टू लिव हियर, सबसे अच्छी बात यही थी कि जब आप दोस्तों के साथ बैठते थे तो एक लिटरली ऐसा लगता था स्टैंड अप शो है, एक वहाँ से शुरू हो रहा है, फिर वहाँ उसका जवाब आ रहा है, और ऑफ द मोमेंट बिल्कुल सारे पैसे ही बैठक के यार। तो वो ऑब्वियसली वो पर्सनैलिटी तुम्हें निकालना ना, वो तुम एज अ कोट एंड कोट डायरेक्टर ही निकाल सकते हो कि तुम सारे लड़कों को कंफर्टेबल फील करो, एट द सेम टाइम वो परफॉर्म भी करें, क्योंकि द क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो सही है कि you're trying to record this and you're trying to make a moment out of it, लेकिन अगर क्रिकेट खराब हो रही है तो फिर लोग तुम्हें गालियां देंगे। देयर आर मोमेंट्स के GoPro भाई बैटरी डलती है उसमें। हाँ। अरे एक बैटरी कराची की गर्मी में, द मोर इट हीट्स अप, बैटरी उतनी जल्दी जाती है। तो होता है कि 40 मिनट्स हो गए, और अगर आपका भाई खड़ा हो गया, लंबी इनिंग खेल रहा है अपनी, खड़े हो गए, 10 ओवर हुए और बैटरी गई। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? तो मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि मैं एक बैटरी अपने जिपर में, अपने इसमें ट्राउजर की जिप में डाल के ले जाऊंगा। यार चेंज यूं थोड़ी होता है, वो मुझे पूरा खोलना है, अपना हेलमेट उतारना है, मैं ग्लासेस उतारना है, मुझे अपना हेलमेट उतारना है, मुझे GoPro का कवर खोलना है, अब GoPro उतारना है। अब जो ग्राउंड में 15 लोग हैं मेरी शक्ल थोड़ी देखेंगे, टूर्नामेंट का मैच चल रहा है, कॉर्पोरेट लीग टूर्नामेंट चल रहा है, अंपायर को पैसे मिलते हैं ओवर टाइम पे करने के, वो कह रहा है भाई चलो सर 1 मिनट चलो। अब ऐसे में क्या करें? तो अब ऐसे में ये कि एक कैमरा फिट हो अलग से, लड़के रेडी हों, बॉयज हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अब तो थोड़ा सा उन्होंने देखा ना सब्सक्राइबर वगैरह, व्यूअरशिप एंगेजमेंट आ रही, तो अब सारा मिलियंस में व्यूज हैं भाई। यार मेरी एक शॉर्ट के 10 मिलियन व्यूज आए। जी देखा आपने भी देखा है? ऑफ कोर्स मैंने देखा है। वो 10 उस शॉर्ट से मैं नहीं आया हूँ आपके कंटेंट पे, लेकिन मैं तुम्हारी जब अभी पेज स्कैन कर रहा था तो मैं क्या ये लड़का तो ग्लोबल हुआ है, लड़का तो ग्लोबल हो गया यार। इंडियन बहुत यार, शाउट आउट टू इंडियन फैंस यार। मेरे पास गुजरात से इतने लोगों के मैसेज आते हैं कि यार वी लव योर कंटेंट। उसमें एक मैसेज जरूर वो होता है, ये सारे जो ये इंडियन है ना, ये पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, वो 10 बजे कितनी सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ सही बात है। अभी उनकी आबादी इतनी बड़ी है, मेरे साथ भी होता है, जो मेरा जो पर्सनल कंटेंट है ना, जो अपार्ट फ्रॉम द पॉडकास्ट, वो भी वायरल होता है, सिर्फ इंडियंस की वजह से होता है। एंड देन ऑब्वियसली उनकी आबादी इतनी बड़ी है यार। मेरे 26,000 सब्सक्राइबर्स में से हाफ सब्सक्राइबर इंडियंस हैं। बताओ, इट्स अ बिग थिंग। बताओ। और लोग बोलते हैं इंडिया से ताल्लुकात बुरा करके रखते हैं। अभी तो आपने देखा है, आपकी टीम जाएगी नहीं जाएगी, इस पर डिस्कशन हम लोग हो रही है पूरी। मेरे भाई की भी पॉडकास्ट पे ये डिस्कशन हो रही थी। असल में हमारे भी बहुत सारे इंडियन फॉलोअर्स होते हैं, बल्कि हमारी एक रील वायरल हुई थी, तो उसमें युवराज सिंह का कमेंट आया था। अर्जुन तेंदुलकर की हमने कुछ बात की थी,
मुझे तो नेपोटिज्म का शदीद बाशिंदा लगता है वो, और अर्जुन तेंदुलकर, सचिन का जो बेटा है, सही है, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहा था। हाँ, हमने थोड़ी सी ले ली, ठीक है, नो ऑफेंस। हमने बोला यार मुझे तो समझ में नहीं आया, वो इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर, उसका रनअप इज कॉमिकल, और इतनी तेज भागने के बाद 130 यार किलोमीटर। इंडिया में लाइक उनकी बेंच हार्दिक पांड्या वन सेट कि हमारी जो बी टीम है, हम 2 टीमें बना ले, बी टीम भी जाके वर्ल्ड बीटर बन जाएगी। वो कुछ हद तक सही इसलिए था बिकॉज दे हैव सो मच, लाइक अ गाय लाइक संजू सैमसन इज सिटिंग आउट। यस, सही है, उनके पास उमरान मलिक जैसा बंदा है। आई नो अभी वो वेवार्ड चल रहा है, इसका वो हारिस रऊफ वाला फेज आया हुआ है जो स्टार्टिंग में था, बट ही इज टैलेंटेड, उस पे कोई सवाल नहीं है, नो पॉइंट। सही है। उसमें अर्जुन तेंदुलकर जैसा वेवर्ड एक्शन में और वेवर्ड उसमें बॉलिंग कर रहा है, जो कि 30 32 रन डेथ ओवर में खा रहा है। जी। एंड आई एम लाइक, आई कांट बिलीव कि इंडिया की पॉपुलेशन में इससे अच्छा लेफ्ट आर्मर बॉलर नहीं है। That's what I'm I saying. can't believe. हमारे भी यही ओपिनियन था। आपकी रणजी में कोई बॉलर नहीं है जो मुंबई इंडियंस के लिए पहला ओवर डाल सके? I mean, Strange. do you have any bowler जिसका सरनेम तेंदुलकर है? I don't think so. तो हम इसी बात पे हमने ली। मेरे भाई ने बोला कि यार ये 128 130 क्लिक्स इसकी मैक्सिमम है जिसपे उसने विकेट ली थी, वो भी 20th ओवर के टॉप एज पे बाउंड्री पे कैच हुआ था। वो उसके हमारे वसीम जूनियर के साथ भी ये मसला है, वो भी इंतहाई नॉन थ्रेटनिंग बॉलर लगता है। और क्यों, मेरा तो ओपिनियन ये है, मैं गया था मैच देखने अभी 5th ODI, आई थिंक वसीम जूनियर ओनली गेट्स विकेट्स बिकॉज द बैट्समैन डोंट गिव हिम रिस्पेक्ट। उनको लगता है हम उसको उठा के फेंक देंगे, 2 चौकों के बाद वो बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनकी नज़र में वो इन्फीरियर है, वो ये सबसे लोएस्ट बॉलर टारगेट। है, हाँ, वो इसलिए विकेट्स लेते हैं। अर्जुन तेंदुलकर के साथ भी ये हुआ, हमने ये बात करी, वायरल हो गए। बट द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड वसीम इज वसीम डजंट बोल द फर्स्ट ओवर। उन्होंने अर्जुन को न्यू बॉल दे दी अगेंस्ट गुरबाज, और वो गुरबाज जो कि शामी को नहीं छोड़ रहा था, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा। हाँ, तो अब उसने खाई भी उसी तरीके से। आई थिंक उसकी एवरेज कोई क्या इकोनॉमी क्या थी उसकी, कोई 11-12 की थी फर्स्ट गेम में, तो उसके 44 रन खाए थे या 42, इस तरीके से कोई खतरनाक एवरेज थी उसकी। और बब युवराज की हट गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि युवराज के अंडर ये प्रैक्टिस किया। युवराज मेड द कमेंट अगेंस्ट, या युवराज मेड द कमेंट्स अगेंस्ट अस, ही वाज लाइक, तो वो वायरल हुई पहले, तो उसके बाद फिर हम लोग खुश हो गए यार व्यूज़ आ रहे हैं। फिर एकदम से मेरे भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा, युवराज हैज कमेंटेड। हमें जाके देखा तो युवराज ने हमारी ले ली। इट्स इजी टू टॉक, हार्डर टू प्ले। बोल तो सही रहा है। बोल तो सही रहा है, मतलब हमने तो कभी IPL नहीं खेला है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप ही सही बोल रहे हो। हम भी सही, हम तो गलत तो नहीं बोल रहे थे। फिर उसके नीचे पूरा अलग डिस्कोर्स शुरू हो गया, इंडियंस ही आ गए सारे के, पाजी ऐसा नहीं होता है, ये तो नेपोटिज्म है, इंडियंस ही बोल रहे हैं। तो ये मतलब like we were saying, the point was कि the Indian community, especially cricket community, is so huge and they love this kind of content. और जब वो सपोर्ट करते हैं ना, दिल से सपोर्ट करते हैं, they don't care कि बंदा पाकिस्तानी है, बंगाली है, श्रीलंकन है, they support गैरत वगैरह भी। गैरत के भी तुम देखना, अगर कभी वो अपनी बताए अपनी एनालिटिक्स, I'm very sure that his analytics are filled with Indians. Indians are everywhere, especially in sports. Yeah. और जहाँ तक अर्जुन का मामला है, वाकई मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इनकी रांझी में इतने, मैं शॉर्ट्स बहुत देखता हूँ, हाँ। जस्ट 2 पर्पस, एक तो क्रिकेट पसंद है, आई कैन टॉक ऑल डे एंड वॉच ऑल डे क्रिकेट, Yeah. सही है। और मैं रांझी की बहुत सारी क्लिप्स देख रहा होता हूँ, एंड मुझे ये हजम नहीं हुआ कि पूरे रांझी सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट में, एक लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है जो मुंबई इंडियंस के लिए नया बॉल डाल सके। I mean, okay. Very suspicious, right? तो लेकिन अगेन तुम इस तरीके की बातें करते हो, हम लोग तो डेफिनेटली हम लोग अगर टॉक पॉडकास्ट है तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं यार ये हो क्या रहा है, तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, पे गालियाँ भी पड़ती हैं। अभी तक तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें योर फैंस हैव टर्न्ड अगेंस्ट यू? हो चुका है यार मेरे साथ, यूं कहूँगा 95% लोग तो मेरे हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं रन्स नहीं भी करूँगा तो मैंने अभी रिएक्ट किया था कमेंट्स में, तो मुझे लड़के कह रहे हैं सर आप रन्स करें नहीं करें आप लव हैं। हाँ, मैंने कहा यार ये बेहतरीन, कराची लड़का होगा कि जरूर उसकी मोहब्बत ऐसी तरह की बस ऐसा ही है कराची लड़के। मैं अभी भी, अब ये हो गया ग्राउंड वगैरह मैच वगैरह खेल रहा हूँ ना, तो छोटे लड़के वगैरह आएंगे, हम आपकी वीडियोस देखेंगे, वेरी होलसम ना, बड़ा अच्छा मजा आता है। नाइस यार। तो मैं मिलता हूँ ये वो। जहाँ तक हेट कमेंट्स की बात है, 2-3 लोग हैं जो हर वीडियो पे 2-3-4 कमेंट करेंगे आके, और मैं उनको ब्लॉक नहीं करता। आई जस्ट वुडंट गिव एनी अटेंशन। मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ना मैं रिएक्ट करूंगा, ना मैं लाइक करूंगा। लेकिन यू नो देयर नेम्स। हाँ, 1-2 के तो अभी आ रहे हैं दिमाग में मेरे। We don't want to give them वो नाम आ रहे होंगे वो, और हैं सारे पाकिस्तानी, हाँ, कोई इंडियन नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं। और जाके मैं उनका चैनल पे कभी क्लिक करूंगा तो 4 सब्सक्राइबर, 6 सब्सक्राइबर, 9 सब्सक्राइबर। खुद कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कंटेंट 1-2 शॉर्ट्स होंगी, या फिर वो कोई मुझे W11 में गाने चल रहे होते हैं वो वाली शॉर्ट्स डली होंगी बैकग्राउंड पे कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब नहीं, दे मे नॉट बी यूट्यूबर्स,
लेकिन फिर मैं कहता हूँ यार क्या किस बात का हेट. अच्छा, इज इट इवन लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या बस ले रहे हैं आगे? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो यार मुझे बड़ा पसंद है. सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि like सब कहते हैं पसंद है. से एक बंदा मुझे कहता था शुरू में कि यार आपका कंटेंट में ना वो क्वालिटी नहीं आ रही. क्वालिटी वाइज आपने 30-60 FPS वाला सीन. मैंने कहा यार सही कह रहे हो, मैं इंशाल्लाह अब आपको मिलेगी 2-3 वीडियोस बाद. लाइक इफ यू गो ऑन माय फर्स्ट वीडियो एंड इफ यू वॉच माय रीसेंट वीडियो आपको फर्क मिलेगा. मे नॉट बी द बेस्ट कंटेंट आउट देयर बिकॉज़ यू स्विच द FPS. आई स्विच दी FPS और चीजें चलाना आ गई ना वक्त के साथ. नेचुरल है, व्हाटएवर यू डू वक्त के साथ इट विल प्रोग्रेस. Exactly, सिंपल. yeah. तो मुझे Yeah. चीज़ें करनी आ गई बेहतर. मेरे पास थी, मुझे अब iPhone 7 और Hero 7 से इसलिए मैं अपग्रेड नहीं कर पा रहा था. दोनों में 60 FPS था, दोनों में 4K था, दोनों में 1080 भी था. 4K पे तो YouTube में नॉर्मली लोग वीडियोस देखते भी नहीं, आपका इंटरनेट ही सपोर्ट नहीं करेगा. यार मैं तुम्हारी सारी वीडियोस 4K में देखता हूँ और एट द सेम टाइम लाइक नॉर्मल 80-70% आबादी तो नहीं देखती आपकी. इंटरनेट वाला एक्सेस नहीं है उनके पास. यस, 1080-60 देखते होंगे वो. 1080 हाँ, by यहाँ पे 60. तो अटक जाता है जानी. बस, यहाँ पे simple तो तो मैंने 1080p कहा- अटक जाता है. यहाँ पे नेटफ्लिक्स चल रहा था कल, एकदम से वो धुंधला हो गया. मैंने कहा ये क्या हुआ? वो फ्लक्चुएट हुआ ना इंटरनेट. तो मेरा मैट्रिक्स, हम लोग कल मैट्रिक्स ही देख रहे थे, मैं मेरी वाइफ, और वो एकदम से नियो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ब्लरी हो गया. मैंने कहा यार अभी तो सही चल रहा था, पता चला इंटरनेट ड्रॉप हो गया, वापस आया. अच्छा, ये भी होता है. हाँ यही है. और हेट कमेंट्स का ये है कि ये था तो मैंने किया. अभी कुछ लोग मुझे कह रहे हैं अपना इंट्रो चेंज कर लो, बहुत हो गया, 7 महीने हो गए चैनल बनाए हुए. मैंने कहा इंशाल्लाह अब चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है. अब ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है. अब एक बंदा है वो मुझे कहता है तुम छक्के नहीं मारते. नहीं, मैंने कहा सही है. अब व्हाट ही डज इज जिन जिन मैच में नहीं मार रहा वहां पे कमेंट करो, जिन जिन में लगे में छक्के वहां कमेंट नहीं. अब यहाँ भी तो आके बोलो कि यहाँ पे मारे आपने. तुम ये नहीं देख रहे कि मैंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला. मैं इसी बात पे तुम्हें सराहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास तप्पड़ है, ठीक है. क्योंकि मैं और मेरा भाई ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार जिस दिन कैन यू गैरेथ हो गया या तुम्हारे कंटेंट हो गया, अगर फ्लॉप हो गए तो कंटेंट तो नहीं आया उस दिन, या आया तो 3 मिनट की वीडियो आई. व्हाट डू यू डू इन दोज डेज? बहुत अच्छा सवाल है यार. आपके पास 3.5 घंटे तो है ना पहली इनिंग के. T20 में तो शायद पूरा मैच ही इतने में हो जाता है. आप आउट होके आ गए, मोबाइल वगैरह चीजें तो हैं, सामने दोस्त बैठे हैं, आप बैठे हैं, शुरू हो जाए. तो बेसिकली लड़कों में तो आपको बताना नहीं पड़ता ना, आप शुरू जाओ. ये और कैमरा ऑन है. और GoPro में एक अच्छी बात ये है कि देयर इज अ डिफरेंस कि आप यूं कैमरा लेके किसी के मुंह पे आओ एंड GoPro इज जस्ट अटैच्ड टू योर कैमरा. डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. कैमरा अगर मैं यूं एकदम मुंह पे फोन लेके आऊंगा ना तो वो लड़के थोड़ा सा ना यूं ऑकवर्ड शाय हो जाएंगे. यूं देखेंगे मुझे, इशारा करेंगे क्या कर रहा है भाई, हटा ले. विद द GoPro दे लाइक हाँ सही है यूज्ड. और अब वो आदी भी होंगे, दे एंजॉय इट. So has anyone been like यार मुझे अपनी वीडियो में मत डालना यार, मुझे, मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ, या whatever it is, यार, insecurity, just shy, people don't always. नहीं हाँ, मेरी एक वीडियो है बॉलिंग मशीन वाली. हाँ, उस मैंने पे नहीं देखी. अराउंड, यार वो तो मेरी सबसे फेमस गई है. उसमें अराउंड 1 मैं लाख. तुम्हारे ना डीप कंटेंट देखता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा. सबसे फेमस कंटेंट नहीं देखता. क्या एक्सक्यूज है, वाह. True fan है ना मैं, true fan. वो मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा वीडियो चली, आई थिंक अराउंड 1 लाख व्यूज हैं उसमें. तो उसमें आई वाज शूटिंग अ वीडियो और 1-2 लोगों ने आके कहा यार शायद हम आए हैं, आपका दोस्त शूट कर रहा था, वी डोंट वांट टू बी देयर एट ऑल, ऐसे बोला. मैंने कहा कोई मसला नहीं है बॉस, आप नहीं आओगे इंशाल्लाह. हाँ, बस काट दिया. हाँ. और मैच के दौरान 1-2 दफा हुआ है सर, मुझे तो थ्रेट आई है. अच्छा, ये तो बहुत होता है कराची में, तो बहुत और होता है. मेरी भी गलती थी. अच्छा. लेकिन मुझे थोड़ा सा ओवर रिएक्शन भी लगा, लेकिन क्योंकि गलती मेरी थी आई अपोलोजाइज. थ्रेट ये थी कि हम आपको देख लेंगे, हमारा बंदा आ जाएगा. अच्छा. मैंने कहा क्या हो गया बॉस. हाँ. वो हुआ ये कि मैंने मीम बना दिया. देयर इज अ मीम, वो रोटेटिंग कार वाला, एंड आई डोंट नो टू 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 ऐसे करके एक है. वो घूम आ रहा है, फिर मार्स आ रहा है, फिर यूनिवर्स में घूम रहा है. सो दूसरी टीम का जो कीपर था उससे मेरी बहुत अच्छी मैच में एक वो आती है ना, वो मुझे स्लेच कर रहा, मैं भी उसे स्लेच कर रहा, और बड़ा मस्ती हमारी दोस्ती वोस्ती. तो एक जगह पे बहुत, ही वाज लाइक एवरीवेयर, ही वाज सरफराज हर जगह. तो मैंने उस पे वो वाला मीम बना दिया, थिंकिंग कि अब हमारी इतनी हो गई. इट्स अ मीम, एवरीवन नोज इट्स अ मीम, इट्स फनी. पीपल वर नॉट बैशिंग, पीपल लाइक ओ माय गॉड इट्स फनी. और टिकटॉक वगैरह में लोग एंजॉय कर रहे थे. सब सही, अच्छी चल रही, डिसेंट चल रही. तो मेरे पास मैसेज आता है ऐप पे, जो जिस ऐप पे स्कोरिंग होती है उसके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर दें वगैरह. तो वहाँ वो बंदा नहीं जो उनका कैप्टन वगैरह था, वो बहुत गुस्से में, और वो गालियाँ भी निकाल रहा, वो क्या क्या कह रहा कि यार आपने इजाज़त क्यों नहीं ली, आपने मजाक बना दिया. फर्स्ट आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग इट्स अ मीम, इट्स नॉट मॉकिंग यू इन एनी वे. सेकेंड चीज़ मैंने रियलाइज़ की यार वो मेरा दोस्त तो नहीं था ना.
था तो अननोन बंदा उस वक्त, भले कितनी गपशप हो गई, वो तो लड़कों की हो जाती है, लड़कों को 2 मिनट चाहिए। या 2 मिनट मुझे इजाजत ले लेनी चाहिए थी, या लिंक शेयर कर देता पोस्ट करने से पहले, हाँ कि सही है, बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ फ्रेंड ऑफ योर्स, नॉट अ फ्रेंड, मेरी एज ग्रुप का नहीं है, तो वो मीम वगैरह शायद ना समझे। ही वॉज अराउंड 35। सही है। सही है। और कराची के ये भी है मसला, मैंने नोटिस किया है कि अगर आपकी गैदरिंग में लड़के हैं तो वो जोक हैंडल कर लेंगे। हाँ। हल्के से गैदरिंग से बाहर हुआ, या अगर कोई नया लड़का हुआ ना हो तो सकता है फ्रेंड, फ्रेंड फॉरन होते हैं। ऐसा ही है, बहुत कम ईगो है कराची के लौंडों में, बहुत छोटी ईगो है। या हो भी सकता है, नहीं भी, आई थिंक डिपेंड्स। लेकिन खैर उन भाई का ये हुआ कि आई रियलाइज, मैंने अपने दोस्त से शेयर किया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा थंबनेल वगैरह बनाता है सारे वही साथ, ही इज़ लाइक द मोस्ट हेल्पिंग पर्सन एवर। हाँ तो साथ से मैंने कहा यार ये सीन है, तुम बताओ मेरी है गलती, मुझे लग रहा है। उसने कहा है, उसने कहा तुम्हें पूछ लेना चाहिए, तुम्हारा यार वार नहीं है, तुम्हारी सिटिंग का नहीं था वो। हाँ मैंने कहा सही है यार, हाँ मुझे भी फील हो रहा था। मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार आपके और आपके कैप्टन से भी अपॉलॉजीज, वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों गुस्सा हो रहे हैं, हाँ। वो क्यों थ्रेट कर रहे हैं हम तुम्हें देख लेंगे ये वो, मैंने तो आप पे बनाई है, हाँ। मेरा आपसे मामला है। और वो बंदा इतना गुस्से में नहीं था, वो बंदा चिल था, मतलब थोड़ा सा गुस्से में था। एज सून एज आई अपॉलजाइज्ड, उसने कहा पहले तो यार वीडियो हटा दो। मैंने टक टक टक, मैंने हर जगह से प्लेटफॉर्म से वीडियो हटा दी। ठीक, भाई main इंटेलेक्चुअल video प्रॉपर्टी भी भले हटा दी। मेरी हो, ही वाज इन देयर। मेन वीडियो भी हटा नहीं, दी। इट वाज अ शॉर्ट, अच्छा वो शॉर्ट, इट वाज अ यूट्यूब शॉर्ट। मेन वीडियो का भी बताता हूँ क्या सीन है। तो यूट्यूब शॉर्ट मैंने हटा दी। हाँ मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है। कह रहे हैं यार आपने इस तरह मेरा मजाक उड़ाया ये क्या। मैंने कहा यकीन करें मेरी इंटेंशन नहीं थी, और आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी नहीं है। आपको मुझे सोचना चाहिए था कि ना करूँ या आपको लिंक भेज दूँ। खैर बहुत लंबा मामला हुआ, उनके कैप्टन ठंडे हुए, वो ठंडे हुए। फिर मैंने उन्हें मेन वीडियो अपलोड करने वाला था, उसको मैंने लिंक भेजा, सर इसमें देख लेना सर। उन्होंने कहा तुमने मुझे थंबनेल में क्यों लिया। मैंने कहा आप नहीं है, वो तो आप कोने में। मैंने कहा मैं नहीं हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, सो ओके आप हैं, हाँ उनकी मर्जी यार, वो है। मैंने ये सोचा। अच्छा उसका वो था प्लेइंग विद द चिरपी कीपर। हाँ हाँ, आई थिंक आई हैव सीन दिस वीडियो। हाँ I've मैंने seen मैंने this video. मैंने टाइटल लगाया ऐसा ना, तो मुझे तुम्हारी ये वाली रील तो मुझे याद आ रही है, याद आ रही है। ये तो याद आ रही चली है। थी क्योंकि अच्छी चली ये थी। मैंने देखी है, ये मैंने 100% देखी है। तो उन्होंने कहा यार चिरपी कीपर भी हटा दो। मैंने कहा यार इसमें तो सिर्फ ये है कि मतलब मैं समझा उसको समझ नहीं आया मतलब। मैंने कहा बातूनी इसका ये मतलब होता है एट दिस पॉइंट तुम कुछ ज्यादा ही वो नहीं हो रहे थे, लाइक ये मेरा दोस्त मुझे बोल रहा यार। मैंने कहा कि आई डिडंट वांट टू पिस समवन ऑफ, ऐसे ही मतलब। मैंने कहा यार वो बड़ा बंदा है, लाइक रिस्पेक्ट में मैं उन्हें भाई बोलता था, उनका नाम लेके भाई भाई। ही वाज ओल्डर देन मी 10-15 साल। वो फालतू में मुझे कहें यार प्लीज हटा दो ये वो, मैंने हटा दी। अच्छा मैंने कहा चलो सही है। फिर मैंने टाइटल चेंज किया, चीज़ें चेंज की। बट द थिंग इज आपकी ऑडियंस सब देखती है। यकीन करो नीचे आज भी उस वीडियो के सारे कमेंट्स हैं भाई कीपर को क्या हो गया, Why is he being so chirpy? Why is he being so talkative? And शायद वो ये समझ रहे हो मैंने अपने दोस्तों को बोला हो या किसी को बोला हो। नहीं भाई, नीचे हाफ कमेंट्स एंड आई वाज लाफिंग। मैंने कहा यू कांट लाई टू योर ऑडियंस एवर। कोई देखे ना देखे ऑडियंस तो दिखती है लोग भाई। समझ जाते हैं, लोग ऑडियंस पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, यूएस की, पीपल आर नॉट स्टूपिड। या पीपल आर नॉट स्टूपिड। तो ये एक बहुत वियर्ड था। और तो फिर वही मैं सोचता हूँ कि लाइक दिस बिकम्स अ बिट डेंजरस, क्योंकि मैंने तो बहुत फड्डे देखे मैचेस के बीच में, नो बॉलों के ऊपर, वाइडों के ऊपर कितने फड्डे होते थे। चलो तुम तो थोड़ा सा प्रोफेशनल खेलते हो, न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट आ जाता है ना, क्योंकि तुम कंटेंट बना रहे हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। अगर तुम्हें लगता है सामने वाला इडियट है, फॉर एग्जाम्पल होगा भी, और इफ यू वांट टू शो दैट ये तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यू शुड बी एबल टू, इवन इफ यू ब्लर इट अ लिटिल बिट। लेकिन ये जो यहाँ पे सीन होता है ना कि थ्रेट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब बाहर आओ तुम्हें देख लूंगा, ये बड़ा हार्ड हो जाता होगा यार नेविगेट करना। ये एक ही दफ़ा हुआ है अब तक जितने लड़के खेले, और मैंने माशाल्लाह अच्छे टूर्नामेंट्स भी खेले, और बहुत कभी कभी ऐसे फ्रेंडलीज भी खेलता हूँ कि जब बॉलर पहली बॉल डालता मैं कहता हूँ भाई यार वक्त बर्बाद। तो दोनों खेलें, और दोनों में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई लड़का आके अलग से बोले अब मेरी बॉलिंग नहीं डालें, आप मेरा आउट नहीं डालें, मेरी बैटिंग नहीं डालें। लड़के यही बोलते हैं यार वो मैंने छक्के मारे थे वो भी जरूर डालें, फन में, चिल में। बहुत कराची के बॉयज कोऑपरेट करते हैं सब कुछ। ये इक्का दुक्का तो चलता है, आई थिंक सही है। मुझे भी एक लेसन मिल गया कि आइंदा जो है थोड़ा देख के दाग के लिंक भेज भाज के अपलोड करूं। तो तुम्हारे बॉयज को कितना टाइम लगा कंफर्टेबल होने में? यार जब उन्होंने आई थिंक वेरी रिसेंटली उन्होंने देखा कि अच्छा 10,000 हो गए, 15,000 हो गए, 20,000 हो गए, 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, उन्होंने कहा अच्छा जो कर रहा है सही कर रहा है, सही है। पहले वो लाइक हाँ कर रहा है बस सही है। जब तुमने स्टार्ट किया था टेल मी के we want to be in the video too. Exactly. So that's what I'm saying. So but when you start, right, when you have like 650, 713, वो जो awkward number होते हैं उस पे तुम when did you never get demotivated, या तुमने बस सर नीचे काम ऊपर वाला सीन था कि बस करते रहो कुछ ना कुछ हो जाएगा? यार मैं अपने लिए लगा रहा था।
अच्छा बिकॉज इवन व्हेन आई डू नेट्स तो मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता था देखने के लिए. इवन इफ यू गो डीप ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो मेरी नेट्स के सेशन लगे होंगे, ऊपर ड्रेक का इंस्टाग्राम पे म्यूजिक होगा और मैं बेकार सी ड्राइव पे भी इतना प्राउड फील कर रहा हूँ. तो अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ. आई बिलीव कि मैं घर जाके देखूँ प्रॉपर अपने पीछे से मेरी बैक लेफ्ट कैसा है, मेरा बैक. मुझे वैसे ही पसंद था क्रिकेट खेलना, क्रिकेट की वीडियोस बनाना. तो मैं वैसे ही बना रहा था. लकीली ये हुआ मेरी पहली वीडियो मैंने डाली तो उस पर 1000-1200 व्यूज आए. मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड नंबर फॉर अ फर्स्ट वीडियो. दैट्स अ वेरी गुड नंबर. लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म सर लॉन्ग फॉर्म. इट वाज अ 15-16 मिनट लॉन्ग वीडियो. आते ही 1200 व्यूज. आते ही वेरी 1200 गुड. एंड इट वाज ओनली GoPro. सिर्फ बैटिंग. मैंने ना फील्डिंग मिलाई ना कीपिंग मिलाई. नो एडिट्स, नो ग्राफिक्स जो तुम डालते थे. नहीं कुछ भी नहीं. बहुत बेसिक सा 4-6 आ रहा है, मेरा स्कोर आ रहा है. वेरी सिंपल डन. तो और ये मैंने नोटिस कर लिया था इन पाकिस्तान कोई GoPro से क्रिकेट की प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रहा. दैट्स द थिंग. सो यू कैप्चर्ड अ वेरी, एक तो नीश क्रिकेट, उसके अंदर एक सब नीश समझो जो एक ये कोई चीज भी नहीं कर रहा. एंड दिस वाज द रीजन दैट मी एंड माय ब्रदर स्टार्टेड द इंग्लिश पाकिस्तानी क्रिकेट पॉडकास्ट. देयर इज नन. एंड they don't really know how to do it very well. देयर वो आर ऐसे कर रहे हैं कि महीने में एक वीडियो आधी वीडियो डाल दी, टैग्स वैग्स नहीं लगाया, टाइटल ऐसे ही लगा दिया X टीम वर्सेस Y टीम. ये नहीं सोच रहे कि why would someone be interested in X versus Y टीम. Yeah. या तो उन्हें YouTube नॉलेज नहीं, या उन्हें एडिटिंग नहीं आती, Yeah. या उन्हें कैमरे के सामने नहीं बात करना आता, या उन्हें क्रिकेट नहीं आती. कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लैक कर रहे थे. प्रॉपर कोई नहीं कर रहा था. यू आर वेरी करेक्ट. नो वन वाज डूइंग अ पॉडकास्ट लाइक यू आर डूइंग. एंड नो वन वाज रियली डूइंग स्टफ विद GoPro लाइक आई एम डूइंग. एग्जैक्टली. और मुझे बताऊँ क्या लगा था. मुझे लगा था कि अब तुमने स्टार्ट किया ना, एंड ऑब्वियसली यू गेटिंग नंबर्स एंड यू ब्लोइंग अप, देयर विल बी कॉपीकैट्स. देयर आर थोड़े. अब मुझे अभी तक मेरी नज़र में एटलीस्ट मेरा हैवंट ब्लोन अप. बहुत जेनेरिक फॉर यू पेज है और बहुत जेनेरिक शॉर्ट्स पेज है. मुझे अभी तक, बल्कि तुम्हारी पुरानी रील्स अभी भी रिवाइज वो हो रही होती हैं, रिव्यू हो रही होती हैं. आई हैव नॉट सीन एनीथिंग दैट हैज जम्प्ड एट मी. एक्चुअली आई हैव सीन इट मोर ऑन अक्रॉस द बॉर्डर. इंडियंस बड़े आ रहे हैं मेरे पास. हाँ मैं उसको बहुत देखता हूँ. देयर इज अ वेरी यंग गाय इन इंडिया, क्रिकेट कार्डियो. हैव यू सीन? नो. क्रिकेट मे भी कार्डियो देखा हो मैंने, तो अगेन आई एम ऑन द थिंग राइट. तो मैं नाम नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ यार ये, क्योंकि बेस भले लैंग्वेजेस दोनों साइड्स की सेम हो, लेकिन लहजा जो एक होता है ना वो डिफरेंट है. तो मैं फ़ौरन पकड़ लेता हूँ कि यार ये कराची का तो नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन होंगे. और पता चल जाता है नीचे पुणे लिखा होता है, या गुजरात लिखा होता है, या हैदराबाद लिखा होता है. तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ दोज, बट स्टिल आई हैव नॉट सीन एनी पाकिस्तानी क्रिकेटर ब्रेक थ्रू. And I wonder why that is. Is it because के GoPros expensive हैं? Is it because लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, या वो shy हैं? कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि या तो YouTube नॉलेज में लैक कर रहे हैं, या कैमरा नॉलेज में लैक कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं. हाँ. ये मसला है. एंड आई डोंट थिंक, नॉट टू जस्ट प्रेज माई सेल्फ, Yeah. नो वन हैज No, बीन go दैट, नो वन हैज बीन दैट कंसिस्टेंट. मैं कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ, मैं करे जा रहा हूँ. So तुम्हारा जो upload schedule, what is it? Once a week? Twice a week? It was once a week when I started, then it became twice a week. Now I'm uploading 3 to 4 times a week. Have you ever missed a week in the past 7 months? I missed 3 weeks. और जब उम्रे के अलावा, उसके अलावा मतलब इस तरीके की exceptions के अलावा? नहीं. तो consistently 7 महीने से आ रही है. हाँ मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट होते हैं, आई यूटिलाइज एवरीथिंग. मैं स्टोरी डाल दूंगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, आई ट्राई टू कीप माई कम्युनिटी इंगेज्ड. कुछ ना कुछ डाल दूंगा, बताता रहूंगा गाइज मैच खेला है. अगर नई भी वीडियो बनी, बहुत दफा ऐसा होता है GoPro चलते चलते बंद हो गया, मुझे नहीं पता आई एम बैटिंग, वो जो उसकी बीप होती है मुझे नहीं पता कब बजी, वो बंद हो गया, नहीं बनी. होता है. इतने सारे मैचेस मेरे जाया हुए, नो वन नोज. सही है. वही अब मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मैं तो टेक्निकली सोच रहा हूँ कि बिकॉज आई नो व्हाट इट टेक्स. इतनी दफ़ा हमारे पॉडकास्ट हुए यार, तुम यकीन मानो, वी डन पॉडकास्ट विद इरफान काजी. हमने शूट करना शुरू किया है, कैमरे मोबाइल में बैटरी ख़त्म, या किसी ने कॉल कर दी, या कि इस तरीके की स्टूपिड हरकतें हुई हैं. तुम्हारी सोचे घंटे के पॉडकास्ट ज़ाया हुए हैं. ठीक है, तो आई नो द डिफिकल्टीज. तो मैं ये सोच रहा था कि व्हाट हैपेंस इफ यू फॉरगेट टू चार्ज योर GoPro वन नाइट. तुम गए ऊपर बैटिंग को, तुमने 70 मार दिए 30 बॉलों पे, तुम पागल हो गए. हुआ सर, हुआ. और कुछ भी नहीं, मतलब यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट. व्हाट डू यू डू इन दोस डेज? इट्स ओके. रियली? तो मतलब कोई मीटिंग नहीं है, कोई टुमारो विल बी अनदर गेम. हाँ कोई बात. अच्छा तुम ये बताओ, तुम ये लीग क्या है, किस लीग में खेल रहे हो तुम? व्हाट इज दिस? यार आई हैव 2 to 3 टीम्स. हाँ. वो मुझे बुलाती हैं. सही है. उनसे ही रेगुलर हूँ. कभी टूर्नामेंट मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट मैचेस नहीं होते तो हम वो वीक ज़ाया नहीं होने देते, हम फ्रेंडली मैचेस खेल लेते हैं. तो ये क्या, कौन सा टूर्नामेंट है ये? तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हो, या ये प्राइवेट क्रिकेट हो रही है? नहीं, प्राइवेट क्रिकेट है. अपनी अपनी टीम्स हैं. ग्राउंड्समैन को
5,000 रुपये चाहिए 3 घंटे के। हाँ कोई भी टीम आके उसको बुक करा ले और आपके पास 3.5-4 घंटे के लिए ग्राउंड है, आके खेले। तो आमतौर से प्राइवेट होते हैं। आप हो, आपने अपने 7-10 लड़के जमा करे, 10-11 लड़के, आपने ग्राउंड बुक कर लिया, आप पहुंच गए, सामने कोई भी आ जाए। अच्छा, यू डोंट इवन नो द ऑपोजिशन एट टाइम्स। अच्छा, हाँ, कोई भी होगा आगे। ओके, इंटरेस्टिंग। बिकॉज जैसे मैं मेरा भाई खेलते हैं, हम लोग भी गैरेथ की तरह विलेज क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इतने प्रोफेशनल हैं नहीं। मेरा भाई हैड पोटेंशियल, ही एक्चुअली प्लेड फॉर टोरंटो अंडर 19, फिर वो ट्रिनिडाड गया, ब्रायन लारा किया, ठहरा वहरा, बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी इंशाल्लाह आएगा तो आपको बताएंगे। बट देन अगेन पढ़ाई शुरू हो गई, स्टॉप्ड। तो वी बोथ प्ले सेम टीम में, शेयर सीसी शाउट आउट। और हम लोग का एक प्रॉपर लाइक प्रीमियर लीग स्ट्रक्चर है। तो देयर इज 12 टीम्स, एवरी टीम प्लेज 2 गेम्स सबके साथ, एंड देन द टॉप 4 गो इनटू द सेमीफाइनल्स, ठीक है। तो काफी एंड के तो वीक्स में काफी कठिन मैचेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यू ट्राइंग टू गेट पॉइंट्स। तो तुम्हारा इस तरीके का कोई स्केड्यूल है, इस तरीके का ब्रेक डाउन है, या फ्री फॉर ऑल है, देयर इज नो लाइक टूर्नामेंट या कोई लीग नहीं है? नहीं, लीग कह लो या टूर्नामेंट कह लो, बात है कि लीग एक्चुअली थोड़ा लॉन्ग फॉर्म हो जाता है। टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं कि लाइक 2 ग्रुप्स बन गए, सही है, वही लीग ही कह लो यार उनको। लेकिन ऐसा नहीं, वी डोंट यूजुअली प्ले अनदर टीम अगेन। अच्छा, हाँ, छोटे टूर्नामेंट होते हैं, यू कैन कॉल इट स्मॉल लीग, स्मॉल टूर्नामेंट, व्हाटएवर। मैं समझ रहा हूँ। तो उसमें स्ट्रॉन्ग टीम्स भी होती हैं, स्पॉन्सर टीम जिन्हें कहते हैं। तो उसमें ऐसा है कि कोई इन्वेस्टर है, उसने 10 लड़के पेड प्लेयर्स ले आया, कोई डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है, कोई अंडर 19 सिंध, कोई ये कोई वो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट ना, अगर अलाउड है तो वो आ जाते हैं, तो वो बैंड बजाते थे कि हर प्लेयर पैसे लेके खेल रहा है। सही है, इफ एवरी प्लेयर इज गेटिंग पेड 2-3,000 तो वो अच्छा ही प्लेयर होगा। डेफिनेटली। कराची में कमी नहीं है क्वालिटी क्रिकेट की, बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिकेटर्स हैं, एंड आई कैन एक्चुअली टेल यू अबाउट इट, क्योंकि मैं हर जगह हर ग्राउंड में खेलता हूँ। ऐसे कि आप बोलोगे कि यार ये स्टेट खेल सकता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेट में किस किस को खिलाओगे? हमारे यहाँ ऐसा ही सीन है यार। तो ये सीन है कि कभी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स आती हैं, कभी ऐसी वाली आ जाती है कि यार नजर फ्री है, कल मैच है टूर्नामेंट का, अबे यार 1-2 बंदे कम है, दोनों भाइयों को भी लिया, मैं भी अपने कजन वजन पकड़ रहा हूँ, तो वो बहुत हल्की टीम आ जाती है। समझ गया। अच्छा, टूर्नामेंट्स होते हैं ऐसे, तो 1 गेम एवरी वीक, और बस ऐसे। लेकिन तुम टेक्निकली तुम डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? नहीं, डिपार्टमेंट्स तो अभी रिज्यूम ही नहीं हुए, जो बंद हुए थे, जो खान साहब ने बंद किए थे, अभी स्टार्ट नहीं हुए। अच्छा, जब इमरान खान ने डिपार्टमेंट्स कैंसिल किए थे, तो उसकी जगह क्या रिप्लेस हुआ था? मुझे बताना। कुछ भी नहीं हुआ था। तो टीमें डोमेस्टिक में टीमें छोटी हो गई थी, कम हो गई थी। कितनी 6 टीमें थी ना आपकी, 2 पंजाब की थी, 1 सिंध की, और 5 टीमें आई थिंक, वही था बस। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती थी, उससे आप डिवीजन में जाते हैं और रीजन में जाते हैं, बस दैट्स इट। तो एज अ अप एंड कमिंग प्लेयर, तुम बहुत ग्रास रूट्स लोकल क्रिकेट खेल रहे हो, एंड इवेंचुअली यू वांट टू गेट अप, डू यू थिंक दैट फॉर्मेट वर्कड? दैट फॉर्मेट, हाँ, जो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया था। मुझे दोनों ठीक नहीं लगे। अच्छा, बोथ वर एक्सट्रीम्स। अच्छा, the pre-Imran Khan era had a lot of teams, a lot of players signed by, like उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है बैंकों का, और मैंने उनके साथ खुद खेला है, लाइक इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बैंक का। हाँ, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन पता लग जाता है कि इसका स्किल लेवल कहाँ है, थोड़ा तो मैंने कहा यार इससे अच्छा मैं नहीं, तो चलो ये एक्स बंदा तो है, ये तो सिर्फ वीकेंड पे खेल रहा है, ही इज वे बेटर देन हिम। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ऑडिट नहीं हो रहा, बस आओ कॉन्ट्रैक्ट जिसको बैंक का मिल जाए। अच्छा, उसके वो खत्म हुआ तो उन्होंने सभी खत्म कर दिया ना, इन्होंने रिफाइन नहीं किया, टीमें कम नहीं की, टीमें इन्होंने खत्म काट ही दी, बीच में एक वैक्यूम आ गया, बहुत बड़ा स्पेस आ गया। दोनों एक्सट्रीम्स थे। I get it. तो बहुत सारे लड़के जिनका टोटल लाइवलीहुड क्रिकेट था, दे वर लिटरली जॉबलेस एंड दे वर लाइक अब हम क्या करें। आई नो सच प्लेयर जो कि एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर्स भी थे, दे वर लाइक अब हम क्या करें। तो वो क्या करते थे कि नाइट टूर्नामेंट्स वगैरह जो होते थे, इसमें 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपए लेके खेल रहे हैं। हारिस पेपिया और शाहिद पता नहीं क्या अजीब गरीब नाम होते थे इनके बड़े। तो दे वर स्टिल मेकिंग डिसेंट मनी, बट उनको बहुत बड़ा एक डेंट पड़ा है उनकी पॉकेट पे। तो दोनों एक्सट्रीम्स थे। Because I remember जब मैं कराची में था, me and my brother used to go to PIA Cricket Academy, बिल्कुल जौहर में था ना, जौहर में था बिल्कुल हमारे घर से। तो हम मेरा कैंप वहीं था डिस्ट्रिक्ट, हम ओवरसीज बैंगलोर में थे। I don't know if you know overseas बैंगलोर। तो उसके बिल्कुल पीछे जो है ना था, like we could see it from our छत। तो हम लोग जाते थे हर संडे सुबह 7 बजे। हम मेरे भाई गए हैं bro for 3 years I think। और at the same time we used to also go to the कब स्काउट्स का सीन होता था। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपका और 500 रुपये कम फीस, तो आप हमारे अब्बा ने उसमें भी करा दिया था। तो हमारा सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक की ख्वारी होती थी। लेकिन मुझे हर वक्त ऑकवर्ड लगता था या वियर्ड लगता था
कि PIA की क्रिकेट अकेडमी क्यों है यार? आई नेवर अंडरस्टूड दैट. लाइक आप जैसे कनाडा में क्रिकेट कनाडा की क्रिकेट अकेडमी है, उनकी ब्रांचेस हैं, लेकिन क्रिकेट कनाडा की है, द कैनेडियन बोर्ड ओन्स इट. ठीक है, स्पॉन्सर्स वगैरह आएंगे, ये बैंक ने स्पॉन्सर कर दिया बट इट्स दी उनका ओन है. मैं जाता था, देखता यासिर हमीद की तस्वीरें लगी हुई हैं, वसीम अकरम की तस्वीरें लगी हुई हैं, इन सब की. दे प्लेड फॉर PIA. इट नेवर मेड सेंस टू मी. फिर UBL का बैंक का एक कॉम्प्लेक्स का मतलब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एंड आई टू दिस डे इट डजंट मेक सेंस टू मी. बट आई गेस एक कल्चर है, दे हैड अ डिपार्टमेंट सिस्टम है. डिपार्टमेंट के नाम पे बनते गए. हाँ, ये था. और अब तो बहुत वेवर्ड स्ट्रक्चर हो गया, बट आई थिंक अब तो ग्रीन लाइट दे दी गई है. डिपार्टमेंट्स रिज्यूम होंगे. या कब होंगे ऑफिशियली यही मुझे नहीं पता. आई थिंक होने वाले होंगे, लेकिन आज से 2-3 महीने पहले न्यू गवर्नमेंट जैसे ही आई तो उन्होंने बोला भाई सब रिज्यूम हो जाएगा. हाँ, तो कब होगा ये किसी को नहीं पता. क्योंकि आई ऑलवेज थॉट दैट सिस्टम लाइक खैर इट्स हार्ड टू कंपेयर द UK ऑल द टाइम. अनोइंग भी लगता है कभी कभी, लेकिन उनका जैसे जो काउंटी कल्चर है ना, तो बेसिकली जैसे अगर लेस्टरशायर या नॉटिंघमशायर की टीम है, तो उस टीम की भी 3 सब टीम्स हैं जिससे आप एलिवेट होके ऊपर आते हो. दैट मेक्स सेंस राइट. अगर कराची फॉर एग्जांपल, कराची की मुझे याद है कराची डॉल्फिन्स होती थी, ज़ीब्रास होती थी. मैं तो मैचेस भी देखने गया हूँ इनके, जिसमें आफरीदी की डॉल्फिन्स थी और मलिक की सियालकोट, कराची वाइट, कराची ब्लू, कराची डॉल्फिन. राइट. दैट काइंड ऑफ मेड सेंस टू मी कि ठीक है यार, आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप सबसे नीचे लेवल पे आए हो, एंड देन यू स्कोर रन, यू गो अप, you elevate yourself, and then maybe in 2-3 years, 2-3 सीजन के बाद you're playing कराची ज़ीब्रा, कराची वाइट, और उसके बाद सिंध etc. सही है. ये मुझे समझ में नहीं आया कभी कि तुम HBL की तरफ से खेल रहे हो, तुम UBL की तरफ से खेल रहे हो, PIA की तरफ से खेल रहे हो, and then how do you progress? Like what is the ladder? यार there are 2 ways to make it big. दूसरा बताओ, मुझे पता है. नहीं, एक होता है थ्रू प्रॉपर चैनल. यू गेट पिक्ड इन डिस्ट्रिक्ट, आपने अंडर 13, 16 या 19 खेला, फिर आप खेलते गए ऐसे डिस्ट्रिक्ट से रीजन, रीजन से आप सिंध खेले, स्टेट के प्लेयर बन गए, फिर आप या तो अब PSL खेल जाएंगे अब, या आप पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट खेल जाएंगे. एक होता है जो आप ओवरलैप कर जाते हैं, या थ्रू PR, थ्रू मे बी योर गेम इज टू गुड टू, या आपका लास्ट नेम मसूद हो या उल हक हो, तो फिर आप सीधा जो है ना. यार सॉरी, मैं यहाँ नहीं जाना चाहूंगा गाइस, मैं नहीं हूँ कंट्रोवर्सी का पार्ट गाइस. Imam ul Haq, to be fair, I really like. I think he's maybe he was a product of nepotism. Like, and he has proven himself. There is no way that he is definitely in the conversation of being Pakistan's top 5 openers of all time. Maybe. आप क्यों इतना लग रहा है, आपकी कोई controversial opinion है इसके against? You know he has 1100s, right? Yeah, I know. Saeed Anwar has only 18. Yeah, I know. Only 18. यार Saeed Anwar. 18 या 20 है Saeed Anwar की. प्लेयर के साथ कौन सा? Bro, come on. इमाम की अभी 8-9 साल और रहते हैं उसकी. Imam is brilliant. That's what I'm saying. Problem I have with Shan Masood and Imam is, यार जैसे ही बॉल जरा सा घूमता है, ये क्यों घूम जाता है? वो भी घूम जाते हैं. हाँ, ये तो है. लेकिन आप देखें अभी The same problem with Abdullah Shafiq. Elegant player, classy. Like I want to reach that level of cover drive और lofted drive, और मतलब कौन सा शॉट अब्दुल्ला शफीक cannot play in PSL. बट वो इंटरनेशनल में ट्रांसफर नहीं हो रहा. डू यू रिमेंबर मोहम्मद हफीज़'s स्टेटमेंट बिटवीन द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? He said कि पाकिस्तान में टैलेंट प्लेज, इंडिया में प्रोडक्ट प्लेज. That's a mic drop moment from मोहम्मद हफीज. तो बात तो उसने सही बोली है, भले कड़वी बोली है. दे नो हाउ टू नरिश. अब ये जायसवाल वगैरह जो आया है, they are like big, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जायसवाल विल बी वेरी सिमिलर टू गिल. लाइक गिल को मसला नहीं हो रहा, वो वही 150 पे न्यूजीलैंड पेसर्स को वैसे ही मार रहा है इंटरनेशनल में भी. नहीं हो रहे फ्लॉप उनके, हमारे क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? कहीं ना कहीं रीजन. अच्छा, वी नो स्किल वाइज हमारे फिट है, स्किल है, टैलेंट है, वो इंटरनेशनल पे कहीं ना, मे बी इट्स अ माइंडसेट इशू, मे बी शायद स्किल वो इशू नहीं है, टैलेंट इज देयर, मे बी स्किल इशू है. व्हाटएवर इट इज, वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट. द नंबर 1 example of this, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, तो मे बी दिस वाज his last. I don't think he's going to be in the World Cup squad. I don't think he should be. I don't think he will be. But the number 1 example of जो तुम कह रहे हो ना, स्किल, जो टैलेंट वर्सेस प्रोडक्ट की बात जो कही थी हफीज भाई ने भी, हैदर अली जाया कर दिया यार उसको. हैदर भाई से तो मुझे मिलके गिला करना है कि आपको अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया है. मेरा भाई रोता है उसको देख के यार. मैं बोलता है यार, जब उसका दांत नहीं था ना, वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर था. उसका दांत लगवाने के बाद ना उसका हेड टिल्ट का कुछ खराब हो गया है, क्योंकि उससे अच्छा क्लासी प्लेयर, पीपल कॉल्ड हिम द नेक्स्ट बाबर आजम. ऑल फॉर्मेट प्लेयर है सर वो. व्हाट द हेल डिड ही डू? यार
मुझे तो माइंडसेट इशू लगता है बिकॉज वी ऑल नो कि वो ग्राउंड के बाहर भी फेंक सकता है Yeah. एंड वी ऑल नो कि वो कवर ड्राइव भी इतनी एलिगेंट मार सकता है रिपीटेड बेसिस पे कि हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसे देखा है Yeah. और फिर वो इंटरनेशनल में ट्रांसफर नहीं होती तो बहुत अजीब सा लगता है मेरे भाई की थ्योरी ये है कि हैदर अली के साथ हमने बुरा इसलिए किया कि हमने उसको शुरू के 5 पे सब पे खिला दिया कि यार तुम 5 पे नहीं चल रहे तुम अपना चले जाओ आई डोंट थिंक अ अपने पे नहीं चले, तुम बैट्समैन 3 पे शुड चले जाओ। कंप्लेन अबाउट नंबर मेरी तो ये फिनोमेना है हमेशा से नहीं आई एग्री कहीं भी खेलो रन्स तो करो आई एग्री विद यू। फिर तुम्हारा इसके ऊपर क्या ख्याल है कि यार, ये रिस हमारी बाबर- टीम में होता है। रिस बाबर के ऊपर क्या ख्याल है तुम्हारा T20 में? आई लव देम सी मी टू मैन। आई लव देम I think हाँ if- मेरा बाबर से कभी कभी गिला ये है बाबर से गिला नहीं हो सकता। नहीं बाबर से कभी कभी गिला है कि वो पावर प्ले में जो थोड़ा सा टाइम कभी कभी ले लेता है ना एंड देन ही गेट्स आउट तो फिर वो ये होता है अबे यार हाँ, तो 6 दैट ओवर में स्ट्रेटजी 40 इज लाइक डू और डाई वाली अब नीचे आके ये होता है यार चाचू ही बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं अब आके कौन पूरा करेगा वी नो शान मसूद नहीं कर पाएगा इस तरह पूरा फखर चल गया तो चल गया फिर आप किस पे डिपेंड कर रहे हो नीचे शादाब और नवाज जो कि प्रॉपर पावर हिटर नहीं बने अभी तक शादाब क्यों नहीं अभी तक पावर हिटर बन रहा? इट्स बिन 8 years। यार शादाब को ना माफी है यार शादाब को माफी है तो फिर यार शादाब क्लेम ना करे ना कि वो पावर हिटर है। वो PSL में 12 मैचेस में 3 एक अच्छी नहीं खेल लेगा। शादाब 25 को बॉल पे माफी 50 इसलिए मार कि देगा। यार एक तो गन फील्डर Facts। मुझे नहीं लगता हमारा इतना बेस्ट कोई फील्डर आखिरी 10-15 साल में था शायद फवाद आलम। better than Shadab have you taken the have Do you you seen remember the his- catches Shadab has But taken do you remember his mid-on throw जिसने रन आउट मारा था मुझे South सब Africa याद है का? मुझे इसका 100 स्टनर भी याद है Bro, but Shadab has done it for a longer period of time and that charisma that he brings being a 20 like 22-23 साल का हाँ 23-24 का हो गया। एंड शदीद छिली हुई दाढ़ी है उसकी, मतलब उसको बार-बार बताया मुझे कोई। जिस करिश्मा से वो आता है इट डजंट फील लाइक ही इज अ 20-year-old या 24-year-old जितना भी है ही लुक्स लाइक अ 30-year-old मैन जो कि इस गेम में बड़ा मैच्योर्ड है यार हाँ नहीं तो ये तो ये है। चीज मुझे बहुत पसंद है देयर इज अ रीजन ही वाज मेड द वीसी The best Shadab moment that I still think he has not been able to top, which is an iconic moment. आई नो is- व्हिच वन इट इज बताओ। युवराज युवराज, ये पैड पे लगी है, यार। पैड पे लगी है। बच्चा है सेकंड यार। शॉट एट युवराज टुडे Bro, Yuvraj is gonna hate this podcast. I don't even think he listens. But जो कॉन्फिडेंस है ना उसका, he was I think 17-18। एक तो युवराज सिंह को तुम बॉलिंग करा रहे हो इन अ युवराज सिंह। फाइनल, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम कैप्टन को बोल रहे हो कि इसके रिव्यू लो, ये इसकी पैड पे लगी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ। That's क्रेडिट टू सैफी भाई एज वेल आपने अपने बॉय को इतना कॉन्फिडेंस से ब्रिम किया था डेफिनेटली। फिर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था ना, सैफी भाई का खुद का भी चल रहा था उस जमाने में। लेकिन यार शुक्र है तुमने इस बात पे, एक्चुअली आई एम ग्लैड यू मेंशन सैफी बिकॉज आई हैव दिस क्वेश्चन दैट आई डोंट वांट टू गेट सुपर पॉलिटिकल एज वेल, बट तुम कराची में क्रिकेट खेलते हो, इंशाल्लाह ताला यू विल प्रोग्रेस, यू विल प्ले हायर रैंक्स। पाकिस्तानी टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। Why are 8 of them not 8 of them from Punjab or 8 of them from KPK? Why are Karachi players, in other words, not represented in the national 11? यार ये मैं समझता हूँ बेहतर वो बता सकेगा जो डोमेस्टिक में हो ही विल नो द सर्किट बेटर अच्छा अब मैं अपनी पोजीशन से ये बताऊं तो अभी आप किसको बैठाओगे और किसको लाओगे सवाल ये नहीं कि किस एक चीज ये भी है सॉरी कि पंजाब के लोग बहुत ज्यादा हैं आबादी ज्यादा है देयर इज अ रीजन कि 2 टीमें यार yes and no. I mean, आप मैं सिर्फ फिर कराची की बात नहीं करते और हम सिंध को ले लेते हैं ना। हाँ सिंध और पंजाब ठीक है, they're not equivalent. पंजाब की जो पॉपुलेशन है अराउंड 35% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, 1/3 है। आई गेट इट, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते, आप ये मुझे मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कराची में से प्लेयर नहीं निकल रहा, ठीक है। कराची की आबादी 2 करोड़ की है, ठीक है। दैट्स अ लॉट ऑफ बंदा। ऐसा ही है और कराची की खुद की भी एक्स अमाउंट ऑफ टीम्स हैं। ऐसा क्यों होता है कि पिछले 10 साल में मुझे सिर्फ 4 या 5 गिनती के प्लेयर्स कराची के दिखते हैं और मैं लाहौर के तुम्हें 15,000 गिनवा दूं? यार मैं ये नहीं, मैं कोई कंस्पिरेसी स्टार्ट नहीं करता, जेन्युइन मेरी रीजनिंग है, क्वेश्चनिंग सही है। है यार लूप होल्स तो हैं कहीं ना कहीं वो सिर्फ कराची में नहीं है हाँ आई थिंक वो हर जगह है पूरे मुल्क में ऐसा नहीं है कि कराची में ही सिर्फ ये मैं आपको एग्जांपल ये दूं सिर्फ आप बोलो ना प्लेयर क्यों नहीं निकलता आई नो समवन जो कि सिंध अंडर 19 खेला है एंड ही इज सो गुड ही कैन प्ले पाकिस्तान राइट नाउ अब बोलोगे अब यार फेंकी है यार ऐसे कैसे खेल जाएगा इतना बड़ा नाम है तो हम जानते होते हाँ उसको ग्राउंड नहीं मिलता प्रैक्टिस के लिए मुझे अभी उसका मैसेज आया हुआ है मैं आ रहा हमारे तो यकीन मैंने उसे जाते हुए देखा है आई स्वेयर हाँ। उसको ग्राउंड नहीं मिलता प्रैक्टिस के लिए नेट्स नहीं मिलते बिकॉज क्यों नेट्स भी तो 2000 के 2 घंटे के लिए मिलते हैं ना एक क्रिकेटर रोज बुक कर सकता है 2000 के नेट्स नहीं भाई। दैट मीन्स 60,000 रुपए महीने के दैट्स इनसेन। That is उसको insane. नहीं मिला वो सिंध अंडर 19 खेल चुका है ही प्लेज डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर ही स्कोर्स रन्स उसको नेट्स के लिए जगह नहीं मिलती
तो देयर इज अ प्लेस इन कराची वाले जानते हैं टी कोर्ट, इट्स अ फुटसल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट है साथ में, पता नहीं क्या उन्होंने मर्ज करके बनाया, वहाँ वो प्रैक्टिस करता है। नीविन आप वहाँ उठा के नहीं मार सकते क्योंकि बॉल चली गई तो चली गई सर। एंड मैं उसको कहता हूँ, एंड ही सेज कि यार मैं 2-3 साल और खेलूंगा, आई एम 20 ऑलरेडी, मैं छोड़ दूंगा 23 तक। मैंने कहा भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज खेलता रहे, तू पाकिस्तान खेल जाएगा, ही इज सो गुड। यार एक तो लेफ्टी है वो, लेफ्टीज आर ऑलवेज वे मोर एलिगेंट। मैं भी लेफ्टी हूँ तो मैं कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बट ओके। लेफ्टी आपको ड्राइव मारता हुआ राइटी से ज्यादा एलिगेंट दिखेगा, मुझे नहीं चाहिए इस पे सेकंड असल में ओपिनियन। मैं टॉर्चर्ड हूँ वो इमरान फरहद सलमान बट एरा का, कि वो हल्का सा बाहर निकल गए। मुझे वो एरा इतना मेरे इधर ट्रॉमेटाइज है ना कि जब तक ये फ़खर और इमाम नहीं आए थे ना, मुझे लेफ्टी से तो नफरत थी। क्योंकि मैंने इतने मैचेस देखे ना अपने बचपन में कि सलमान भाई आए, थोड़ी सी बॉल इधर हुई है, वो निकल के नहीं, सेकंड स्लिप, अल्लाह हाफिज़। ओडीआईज में कि मुझे लेफ्टी से शदीद नफरत थी। आई नो वो तुम गर्म हो रहे हो, लेकिन फ़खर और इमाम के बाद नासिर जमशेद डजंट एग्री। नासिर जमशेद इज अनदर टैलेंट हु वेस्टेड हिमसेल्फ। तुम्हारा बड़ी तुमने वो तो अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, लेकिन नहीं, तुमने ये जो बात करी है ना यार, ये आई रियली फील दैट, बिकॉज इवन एज समवन हु इज़ अ वेरी, मैं कहीं से भी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, मैं एमेच्योर लीग में थोड़ा सा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता हूँ। मैं ये दैट्स हाउ आई डिस्क्राइब इट। एटलीस्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं ग्राउंड वगैरह के जाने के लिए, That's the thing, you and I can afford. बट जो दीज प्लेयर्स हु आर लिटरली ग्रास रूट, जो एक स्ट्रगलिंग घर से निकल के आना चाह रहे हैं, हु इज स्पॉन्सरिंग इसका दिस पीपल? क्रिकेट ही सब है ना, वो पैसा भी, दीन भी वही, ईमान भी वही, Yeah. पैसा भी वहीं से बना रहा है यार वो, उसको नेट्स नहीं मिल रहे। There is nobody to sponsor them. That's crazy. तो इसका तोड़ क्या है फिर? Like, how do we get these people exposed? क्योंकि हर बंदा तो PSL नहीं खेल सकता। If you're looking for my advice to these boys, Yeah. तो वो यही है यार, यूज सोशल मीडिया वेल। जा रहे हो दोस्त को दे दो, फोन बना दो। बहुत सारे लड़के इससे, बिकॉज आपके स्टॉक्स राइज होंगे विद इन द सिटी, हाँ, यू विल प्ले बेटर एंड बेटर। कराची में बहुत अच्छी क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ना, यू विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, पहले टीम के होंगे, फिर इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपके स्टॉक्स राइज हो रहे हैं, आपका जरा एक्सपोजर बढ़ रहा है। सो ये उसके लिए ए आपका स्किल लेवल वाकई अच्छा हो, बी अपने आप को लोगों में नोन करो थ्रू वीडियोस, यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सिर्फ टिकटॉक पे वो गाने वाने वो ना बना रहे हो ना, वो छोड़ दो, अपनी बैटिंग की वीडियोस बनाओ, फील्डिंग की बनाओ। लोगों को यहाँ पे इतना सेंस है, जो क्रिकेट नहीं भी खेलते ना, वो देख के बता रहे थे वो लड़के में दम है यार, सिर्फ वीडियोस में। हाँ, और ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ESPN, क्रिकेट इन्फो वगैरह हो गया, दे एक्चुअली रीशेयर दिस स्टफ बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट। वो बोलते हैं कि मैंने बच्चों की वीडियोस देखी हैं, 6-6 साल के बच्चे कवर ड्राइव मार रहे हैं कोहली से अच्छे। सो आई गेस यू राइट, बट नो ऑफेंस। ये समझ रहे थे, ये बोल के चल पड़ेंगे हम आगे, रुकेंगे नहीं यहाँ पे। नहीं, आई एम अ ह्यूज कोहली फैन। हमें बहुत हेट मिलती है क्योंकि हम एक तो मेरा भाई अपेरेंटली लगता है, मेरी तो स्टोरीज हर दूसरी स्टोरी कोहली पे होती है, तो मुझे इंडियंस बड़े पसंद करते हैं इस बात पे। पाकिस्तानी बहुत बोल रहे होते हैं तुम बाबर हिटर हो, बाबर हिट। मैंने नहीं, यू कैन बी अ फैन ऑफ बोथ, एग्जिस्ट बोथ। क्योंकि मैं बास्केटबॉल भी बहुत देखता हूँ ना, तो मुझे तो कोहली और बाबर लगते हैं माइकल जॉर्डन और लेब्रॉन टाइप। ठीक है, अगर जॉर्डन नहीं आता तो कभी लेब्रॉन नहीं आता, और अगर कोहली स्टारडम पे नहीं आता तो बाबर भी स्टारडम पे। बट आई लव द रिस्पेक्ट बाबर हैज फॉर, आई लव दैट, और इट्स बोथ वेज बाय द वे, बोथ वेज। क्योंकि मैं पता नहीं किसी पॉडकास्ट पे कोहली को सुन रहा था, स्काई स्पोर्ट्स पे डॉक्यूमेंट्री है, there we go, he was talking about how much respect Babar gave him, and I totally agree. But लेकिन कोहली जैसा बंदा जो है ना, the man who literally changed the game, क्योंकि पहले जो जिस तरीके की क्रिकेट होती थी ना, वो होती थी इंजमाम उलग टाइप, निहारी खा के आए हैं, चले गए 6 दिन बैटिंग करने के लिए। कोहली ने एक प्रोफेशनलिज्म जो लेके आए ना गेम में यार, लीन डाइट, अपना पर्सनल ट्रेनर, he doesn't bullshit, अपना even the 3 years that actual professionalism, the 3 years that he didn't score a century, even then he was the king, the GOAT. वो पे बाबर ने अडॉप्ट किया, and other players are adopting it. वो कोहली से पहले I don't think anybody was bringing. हाँ ऐसा ही है। I had some IPL coach और some coach of international team, उन्होंने एक दफ़ा एक बात बोली कि 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक दे आर सो फिट कि जब हम ड्रिल्स और स्ट्रेचिंग वगैरह करवा रहे होते हैं ना, तो वो पुशअप स्क्वाट सब हो रहा होता है और वो रेडी होते हैं, कोच वी आर रेडी फॉर मोर। दे आर नॉट द बेस्ट बैट्समैन, नॉट द बेस्ट बॉलर, लेकिन वो बहुत फील्डर अच्छे होंगे, वो फिटनेस में वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, गेम में नहीं होता। ये वो है जो अपने गेम में भी नेक्स्ट लेवल है, इसकी फिटनेस भी नेक्स्ट लेवल है, इसकी हर चीज़ नेक्स्ट लेवल है, एंड इट वाज़न्ट देयर। उसने काम किया है। Yeah. मुझे याद है when Kohli first came, even he talked about it, that he was a very average player.
and he had to to I had to work become- really hard, he said. yes, and then you can see that 2013 के बाद जो उसकी जो progression आई है, जैसे दाढ़ी लंबी हुई, जैसे जिंदगी में अनुष्का आई उसके, he was like, bro, I am gonna be the best. And I'm sad that the 3 years that went by where he was struggling, उस 3 साल में by the way He was scoring runs. He was scoring है. runs. but he won't cross the 100 century mark, which is sad. आपने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया है हाँ कि सिर्फ 50 से बात नहीं चलेगी बॉस. हाँ 75 कर चाहिए. चुके हैं, but like यार 100 नहीं हो रही यार. 100 चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में जाके मैन ऑफ द सीरीज आप आ रहे हैं. वी डोंट केयर भाई. 100 चाहिए. That's true. And I think Babar is one of those guys. Me and Bashar always talk about this. We don't know if he'll hit 100 centuries, but he should cross the 75 mark. I don't even care. I'll just be like, just do what you're doing, yaar. Brilliant. Like you have all the support from the Yeah. country. Just keep doing what you're doing. और बहुत अच्छी बात मुझे उसकी लगती है वो कंपैरिजन में आता ही नहीं है. हाँ. He treats Virat as someone he learns from. हाँ. I learned from Virat. My idol is AB de Villiers. He doesn't feel like मेरे कोई competition है. नहीं. Yeah. He doesn't feed the news media जो ये- चाहते हैं, especially ये- Shoaib Jatt जैसे reporters. वो जो- I work with him, do you know? You work? I was at Sama. Oh shoot! Tell me stories. Is there any horror नहीं, stories? the good thing is he was like मेरा कोई उनसे ऐसा पर्सनल डायरेक्ट वो नहीं था. मेरे डेस्क हेड का होता था. आई वाज एट समा डिजिटल एंड ही वाज एट समा टीवी एज अ रिपोर्टर. Yeah. बट How is he as a person? Is he? he seemed like a very nice guy. अच्छा. बहुत नाइस. बहुत कोई वो नहीं. तो वेरी उसको- हम्बल. उंगली किस चीज की है? यार क्योंकि मुझे पता genuinely नहीं. इस तरीके के रिपोर्टर्स बहुत बुरे लगते हैं. There is एक बात तो क्लियर है ना. Whenever he's saying something, it seems very intentional. It's not his personality. He's putting on a show. He's the Colby Covington of cricket. अच्छा, so you're saying that He's putting on a show. He's being the villain intentionally. okay. Because but there are- why? For clicks? There are two kinds of fame, na? Maybe. I don't know. So his entire personality. He's a very nice person in general, भाई. मैं तो मिला हूँ उनसे. हाँ. तो Shoaib Jatt is a very nice person in general. But his entire personality is I'm going to bash Babar हाँ. Azam. Babar Azam is in the freaking Shout finals. out to Wase and Iffy. ये कौन है? You don't know Wase and Iffy? नहीं. Oof. Yeah, I don't know these people. भाई, You have to the introduce me. Biggest, ना? You have to introduce me these people. मुझे नहीं पता. भाई, they are the biggest cricket analysts in the country. अच्छा. कोहिनूर ग्राउंड के पास रहते हैं अजीजाबाद में. अच्छा. अरे Shout out भाई, अजीजाबाद. Shout out अजीजाबाद, मुक्का चौक. Yes. और अरे तेरा बड़े ground. जबरदस्त एनालिसिस देते हैं लेकिन बाबर के दुश्मन और विराट को किंग मानते हैं. There is और no, बाबर का लिटरली दुश्मन. बट यार उनका एनालिसिस बड़ा एक्चुअल बड़ा अच्छा होता है. दे सिट इन अ रूम नॉर्मल सा, हाँ. कैमरा ऑन. दे डोंट केयर अबाउट द Oh, wait, बैकग्राउंड. I think I know what you're talking about now. गूगल करो यार. I वासे और feel like इफ़ी. मेरे नाम का नहीं पता था, but I feel like I've seen these people. और YouTube पे when they go live लाखों लोग देखते हैं भाई. लाइव ऑडियंस बिल्ड की हुई है. I don't understand how you can be a Kohli fan and not be a Babar fan. They're the same player, same They are- number, same everything. यार उनका they say sometimes the right thing with the wrong energy and tonality. समझ गया. तो वो कहते हैं यार एक मैच विनर नहीं है. वो कहते हैं वन विल बी आउट देयर एंड वो 99 पे टैप करके सिंगल लेगा, अगला छक्के की ट्राई करेगा. What is your opinion on this? I like that you mentioned that. ये Simon Dewell साहब ने जो एक कीड़ा हवा में छोड़ दिया था और सबने पकड़ के उसको. यार मैं सैमन डोल को तो नहीं बोलूंगा वो उसका जो भी ओपिनियन. मैंने खुद जो देखा एक दफा वो ये इंग्लैंड की सीरीज में था व्हेन ही वाज ऑन 99. वी नीडेड आई थिंक 20 in 2 overs. Yeah, जिसमें So रिजवान match was not done. Rizwan was also on the Rizwan end. This was was a also there. 10 wicket win that they had. 70-80 पे रिजवान हाँ, था. हाँ, याद है 90 मुझे. पे 99 पे बाबर was playing magnificently. और हाँ, 56 ball century. और बॉल वाज देयर टू हिट. बाबर वाज प्लेइंग द बॉल जैसे फुटबॉल दिख रहा है. हाँ. अपर कट पे छक्के, वो पॉइंट पे छक्के ऐसे मार रहा है बाबर हर जगह. बस टैप करके सिंगल है. आई वाज लाइक Yeah, I remember that. What is the problem with that though? मसला क्या है इसमें? गेम इज नॉट डन येट माय फ्रेंड. दैट्स द प्रॉब्लम. मे बी मेरा एज अ क्रिकेटर वो है. And I can guarantee if Kohli is there, he would try to hit it for 6 and close in the gap between balls and runs. समझ गया. अभी आपको 2 ओवर में 20 चाहिए. आपको 12 पे 8 या 12 पे 12 नहीं चाहिए. हाँ. Do you understand? 2 विकेटें अभी गिर जाएं आपकी 100 के बाद, क्या 10 पे 20 फंसा नहीं सकती टीम लाइक इंग्लैंड? Yeah. I'm hearing what you're saying. That's the only thing. But my disagreement comes where आप चलो ठीक है उस बॉल पे से सिंगल लिया, he got his 100. उस बॉल पे वो छक्के पे मारने का ट्राई करता, मिस करता, टॉप एज आउट. बॉल भी मिस हुई, रन भी नहीं बना. No, 100 you भी are नहीं बनी. like इतनी तो क्रिकेट खेली है मैंने तुमने कि तुम बता देते हो कि इंटेंशनली
माइंड बन गया है सिंगल लेना है, वो बैट लिफ्ट हाई नहीं जा रही, वो पहले ही आगे स्टेप आ समझ गया गया। कि मैं टैप करके सिंगल ले लूं. I don't think That's that's, the a thing. problem. I don't know. I am a guy who loves. Is it? I love Babar, right? तो मुझे उसकी greatness, him too. उसकी greatness मैं जितनी कहता हूँ हमारे बढ़ेगी. पास तो आखिरी 20 साल में या शायद बाय द टाइम ही फिनिशेस हिज करियर, बाबर से बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया होगा. Our podcast claims that he already is the best Pakistani batsman ever to be. All ever to format wear the green. player. All format player. लोग कहते हैं T20 में, नो कीप हिम इन T20s. Yeah, definitely. But जो बात उसकी हो रही थी, बाबर की greatness, people also call him a pad stuffer, कि वो अपने stats padder or something like that. ये उसका गेम ही है. So the game ही आई है. तो if he goes and makes that 100, that just further proves his greatness. And I just love the narrative that Babar is on. कि यार मैं हूँ गोट, कर लो जो भी करना है. और उसके लिए उसको वो 100 करनी जरूरी थी. अब वो सिंगल पे करे, वो छक्का मारे. नहीं वो देखो, ही वन अस द गेम. हाँ. तो बात खत्म, डिबेट खत्म हो गई, सही है. रमीज राजा ने जब कमेंटेटर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, व्हेन यू लूज तो आपकी अच्छी चीजें भी ऑडिटोरी होती हैं, एंड व्हेन यू विन तो आपकी बुरी चीजें भी ढक दी जाती हैं. या तो मैंने बहुत बहुत जबरदस्त बात की बॉय ने कि यही है कि क्योंकि हम मैच जीत गए तो नो वन विल मेंशन इट. Yeah. सही है. अभी विराट की 100 हुई, शुभमन गिल ने और कम बॉलें ली और 100 मारी, तो सब कह रहे हैं क्योंकि विराट ने 1 छक्का मारा, शुभमन गिल ने 8 छक्के मारे इसलिए जीता. तो फिर किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट में नीचे बोला हुआ था, जो क्लासन है उसने इससे ज्यादा अच्छी इनिंग खेली थी हैदराबाद और आरसीबी के मैच में, बट क्लासन एंडेड अप विद हिज सेंचुरी ऑन द लूजिंग साइड. तो फिर कोहली क्या वहां अच्छा हुआ? तो नैरेटिव डजंट. द थिंग इज कि जब आप हारते हो तो बस आपकी चीज हाईलाइट हो जाती है, आप जीतते हैं तो हाईलाइट नहीं होती. आई वंडर हाउ मेनी इस तरीके की जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो करंट डेफिशिएंसीज हैं, हम उसको साइड पे लगा देते हैं बिकॉज वी आर काइंड ऑफ ऑन अ विनिंग स्ट्रीक राइट नाउ. आई मीन पिछले 4 या 5 मेजर टूर्नामेंट्स में हमने सारे प्लेऑफ्स बनाए, कुछ में तो फाइनल्स में गए, एशिया कप और T20 में. लाइक देयर आर डेफिनेटली थिंग्स इन द टीम दैट कुड बी बेटर जो हम क्रिटिसाइज करने से डर रहे हैं बिकॉज वी आर विनिंग और बिकॉज वी आर मेकिंग दीज बिग claims. But I think if the Rizbar, is it Rizbar? Rizwan? I think Rizbar. it's Riz Babar. Yeah, Riz Babar. Whatever. The Whatever it Rizwan and Babar duo. Yeah. The duo is working. Yeah. It's working. हाँ. दुबई वगैरह में स्लो पिचेस पे because they are the timers of the ball. They are not the hard hitters of the ball. Yeah. थोड़ा सा स्ट्रगल किए, सही है यार. अगर दुनिया के एक हिस्से में स्ट्रगल कर लिए और 9 जगह रन्स कर रहे हैं, सही है यार. कम ऑन, थोड़ा इंसान ही है ना वो. Yeah. सही है. विराट ने भी 50 से 50 किए T20 में यार, 40 बॉलों पे. It's Definitely, okay. definitely. आपका हर 10 के 10 मैचों में आप 200 के स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल सकते. What's your favorite Virat innings? Don't say the Pakistan वाली जो अभी हुई थी, वो please. उसके अलावा. यार, it has to be the World Cup semi-final against Australia at home. Oh. जिसमें विराट मेड 80 odd not out Yeah. and उसने कवर पे 6 दिया था मिचेल स्टार्क को, and that was just a tap of the bat and कवर पे बड़ी बाउंड्री पे and it went into the crowd and I was like, ये क्या? I think that's where he solidified himself. 2011 किया ना ये? नहीं. I'm तो? talking about 2014 or 15 maybe. The T20 World Cup 16 semi-final. I don't remember that. Semi-final against Australia. I will have to go check that one out. And I think he finished it with धोनी. और भाई उफ, एंड उसके बाद धोनी का खुद का अपना क्या मतलब करिश्मा और कैलिबर ऐसा था. विराट always mentions धोनी whenever he mentions his greatness. That is the like Dhoni is what Imran Khan in the 90s was to Pakistani team. के वो ऐसी I team think बना even के greater. Arguably yes, क्योंकि जो खान साहब ने Trophies टीम बना के top, छोड़ के गए थे, that team was legends for 20 years. और MS धोनी का भी यही है. The team that he left in 2011 or 2015, they're great. Like they're all in the Hall of Fame of Indian cricket. Many people often say कि इसमें गांगुली का भी credit because he bred that mindset. Sure. But खैर वो तो बड़ी अजीब सी बात है. एक नई स्ट्रीम है. धोनी is like मैं like when this name comes up to me, I'm like यार मुझे एक मैच तो उसके अंडर खेलना है यार. I just want to sit with him. I want to just मुझे जानना है क्या चल रहा है उस दिमाग में यार. बस इतना एक वो रहता है because he gave an interview yesterday. उसमें कहा मुझे सिर्फ फील्डर से ये चाहिए भले आप कैचेस ड्रॉप करो. It's a MS धोनी कह रहा है. It's not your average international captain. He's saying कि आप कैचेस ड्रॉप कर दो, कोई मसला नहीं है. आपकी नज़र मुझ पे हो पूरे 20 ओवर, बिकॉज मैं हर 2 से 3 बॉल बाद आपको यहाँ से यहाँ चेंज कर रहा हूँ. 2 इंचेस राइट, 2 इंचेस लेफ्ट ले रहा हूँ. If you remember, he's the one who came up with the Kieran Pollard thing. कि Pollard जैसे आता था वो सामने फील्डर लेता था, बिल्कुल बॉलर के पीछे, बिल्कुल वहाँ. और उसने Pollard को 2 से 3 दफा, एंड देन द टीम्स वेंट लाइक, अच्छा Pollard को ऐसे आउट करना है.
बिल्कुल स्ट्रेट फील्डर ले लो. his cricketing mindset is unparalleled. He watches the game 360. ऐसा लगता है उसको ड्रोन है उसका He दिमाग. says I go with my gut feeling. Sometimes it will work, sometimes it won't. At the same time, outclass keeper as well. One of the best in the world. One of the best in the world. और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कीपर तो एक दो छोड़ भी दे तो यार सही है भाई. चलता है. Why is he still in the CSK team? He's not contributing as much as he used to. The directors of the CSK they're like आप कब तक धोनी भाई जब तक वो धोनी चाहे तब तक धोनी खेलेगा. सही बात है. I was watching him I think TikTok पे YouTube पे देखी थी मैंने. Just him coming in for a practice session and there was like 40,000 people on the ground. Just watching him practice. He's a brand. मुझे ये चीज़ मुझे I don't know तुम इसको envy बोलो jealousy बोलो. I feel like there have been so many great players. Again, I get this criticism a lot हमारे podcast के मिलती है क्योंकि I watch NBA very closely as well. और मुझे पता है कि वहाँ का जो नया recruit rookie जो बंदा है ना इस साल, he already has a shoe deal, he already has an ad campaign, he's making 30 से 40 million side पे apart from his contract from the NBA. We have स्टार प्लेयर्स. नसीम शाह जैसा खूबसूरत आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है. अभी मैंने फर्स्ट टाइम इसको जो है ना पेप्सी के ऐड में देखा है. अभी घर के सामने मेरे बिल बोर्ड लगा हुआ है. बट ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स गेट नथिंग एंड देन दे रिटायर मैन एंड दीज आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एंड दे डोंट हैव एनी ब्रांड्स. बाबर आजम लाइक विराट कोहली हो गया. ही हैज़ अ शू लाइन विद पूमा. VK18 का शू लाइन है. उसके 6-7 पेयर्स आ गए. हर साल एक नया निकालता है वो. दैट्स अ ब्रांड. दैट्स व्हाट माइकल जॉर्डन डिड एज अ मार्केटिंग. मतलब अंडरग्राउंड में मेरे मेजर मार्केटिंग था. दिस इज हाउ यू डू इट. बाबर शुड हैव 6 डिफरेंट ब्रांड्स लाइंड अप लाइक बट ही ओनली गोज विद ग्रे निकल्स. लाइक आई डोंट नो. मुझे इतना अफसोस आता है ना कभी कभी कि दीज ह्यूज प्लेयर्स शाहिद आफरीदी हो गया, मलिक हो गया, हफीज़ हो गया, दे डोंट हैव सम सॉर्ट ऑफ थिंग. वो पार्क व्यू सिटी के एड्स में आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज बिग ब्रांड नंबर्स. एंड आई जस्ट इट अपसेट्स मी बिकॉज इंडिया में ये हो रहा है. इंडिया हैज बीन मेकिंग लाइक वो पहले तो टैलेंट को नर्चर करते हैं उसमें प्रोडक्ट में यार फिर वो प्रोडक्ट बनता लाइक गिल उनका ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है. शुभमन गिल उनकी हर टॉक शो होस्ट में होस्ट यही बात कर यार गिल के लिए बड़ा वर्ल्ड कप में टीम्स विल हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ शुभमन गिल. मैंने कहा अरे अभी तो आया है इंटरनेशनल अरीना में लड़का. एग्जैक्टली. और उनका ये भी सीन है कि अगेन थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है कि दे आर डूइंग व्हाट द वेस्टर्न प्लेयर्स डू इज दैट दे आर डेटिंग एंड मैरिइंग एक्ट्रेसेस. ठीक है. और उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है इससे. I think Virat would have been there regardless He of. would. I think, but the brand. I think it worked the KL other way. Rahul. KL Rahul को देख लो. हाँ, They KL all- Rahul के बारे में कह सकते हैं because KL Rahul did not have the stature that Virat had. Okay, he did not have the but they're doing the thing that the Western players do, which is they marry and date actresses. Like you will never hear Babar Azam is going out with Hania Amir. Yeah, Babar Azam, Hania Amir is restaurant में खाना खाते. None of that. Cultural differences 100%. But that also builds on brand because then you become a power couple and then they want you in the Puma ad. यार आप दोनों आ जाएं. आप दोनों को हम X amount of money देंगे. And then so on and so forth. ऐसा ही है. Imran Khan after retirement was a bigger brand because he married Jemima. Controversial tabloids, whatever. It worked for his brand. PTI उठ गई. घर खरीद लिया भाई साहब ने वहाँ पे. Not to say anything against Khan Saab. I love Khan Saab, bro. But like he had that kind of mindset. We don't see that anymore. And like it makes me sad because जो तुम बात कर रहे थे ना अभी कि there are up and coming players who are struggling to find net sessions. And then once they make it big, तब भी they're just making peanuts compared to people who are making even Bangladesh में. My dad went to Dhaka right at the start of COVID. 2022 की जनवरी की बात है. And he was telling me कि शाकिब हो गया या मुश्तफी मुर्तज़ा हो गया या छोटे कीपर का नाम क्या था? मुशफिक रहीम. Yes. They're like everywhere. They're like it's unparalleled. शाकिब की वो ऑरा है जो आफरीदी की है पाकिस्तान में times 10. Shakib is untouchable there, right? And he's on every single brand. Daraz is तो huge है वहाँ पे. Daraz sponsors the cricket team. Their main sponsor. They're making their own local like sub brands बना रहे हैं वो उधर. And my dad was like, we are so behind, man. Even Bangladesh used to be a part of us. यार हम किस चीज में आ गए? Yeah, हम किस चीज में? वो तो अल्लाह की देन है कि हमें बाबर मिल गया वरना तो मैंने तो क्रिकेट देखना छोड़ दी थी यार. मेरे समझ नहीं आता when people doubt his captaincy. Things are working यार. अब और क्या करोगे? Okay, you have Rizwan. We all know Rizwan is a very capable captain. What he did with Multan Sultan. खुश दिल पे आपसे गैम्बल करना पूरा सीजन.
वेरी कैपेबल, बट थिंग्स आर वर्किंग ना. Yeah. आप 2-3-4 फाइनल लगातार चले गए यार, तो इट मींस सही चल रही है And चीजें. I keep reminding people कि आप ज़्यादा दूर की बात नहीं है. 2017 में हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं. 18 में कैप्टनसी अजहर अली को दी गई है. ये डार्क पीरियड ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कुत्ते की तरह रन्स खाए हैं. 5-0 वहाँ से हारे हैं, बांग्लादेश में, इंग्लैंड से हारे. वी गॉट बीटन सो बैड. हसन अली बाहर, ये बाहर, वो, लाइक इट वाज जस्ट अ डिजास्टर. ठीक है. एंड देन आई उस पीरियड पे आई स्टॉप्ड वाचिंग क्रिकेट, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. 2019 के वर्ल्ड कप के बाद आई केम बैक, क्योंकि मी एंड माई ब्रदर वेंट टू सी द वर्ल्ड कप इन द यूके. एंड देन बाबर की वो इनिंग्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई वाज इन द ग्राउंड एंड आई सॉ दैट इनिंग्स एंड आई वाज लाइक दैट्स इट, आई हैव टू बी बैक. देयर इज नो वे कि ये जो टैलेंट है, उस वक्त उसकी क्या 4th-5th सेंचुरी थी इन हिज लाइफ, एंड never looked back. So people when they doubt Babar, I'm always suspicious of them. I think तुम्हारा कोई दूसरा people एजेंडा है. एक नेचुरल चीज बन गई है कंपैरिजन. सही. अब ये कंपैरिजन जो है ना, ये बड़ा मसला बन गया. कुछ भी हो तो विराट ने भी तो किया हुआ है ये. उसकी भाई उसकी इतने मैचेस में इतनी वो तो विराट ने भी मारी है. अरे भाई नहीं करो कंपेयर यार. ही वाज अ डिफरेंट, वो अब ये डिफरेंट है. हाँ. तो ये बाबर के साथ थोड़ा अनलकी है कि हाँ, दोनों की प्राइम्स को लोग फिर बोलते हैं दोनों के प्राइम्स. दोनों, विराट का प्राइम वाज डिफरेंट. Also, single handedly he was winning back to back games. Babar is yet to score a 180 likes. You know where I'm going with this? पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी मारा था उसने. Oh, crazy. 22-year-old walking in a high pressure Pakistan एशिया India कप था ना game. वो? ऐसा ही था. Shit यार, मेरे दिमाग में वो 180 something. We were all like यार ये आउट हो जाए, ये आउट. और उसके बाद से अब तक यही है. Yeah. यार ये आउट हो जाए, हम सबको आउट कर लेंगे. like that game, the Pakistan India World Cup game, it was हम जीत चुके थे T20 वाला. It was 40 रन चाहिए 18 बॉलों पे, something like that. 6 डाउन है या 4 डाउन है, विराट खड़ा हुआ है. By the way, विराट was extremely slow in that innings शुरू में. He just went off. The thing is, बिल्कुल यार. And मैं again, that's one of my, I think that's Kohli's best innings, I think. No doubt. ठीक है, टीम बाहर हो गई, whatever, but that win, that was a great reminder from Kohli Yes. too. And उसके इंडिया में सबसे ज्यादा हिटर्स हैं. मैं Yeah. देखता हूँ हर टॉक शो होस्ट बोला ही इज फिनिश्ड और उसको बिठा दो, उसको ये कर दो, एंड देन ही कम्स विद एन इनिंग जो कि सबको बता देती है कि Yeah. why I and Rohit Sharma are different. When they took the captaincy away from him, I was very sad for him. यार And I बहुत feel ज़्यादा like they're bad gonna scene. do that to Babar very soon. मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है मुझे. बिकॉज I आई mean, if थिंक you have a विराट bad- वाज अंडर दैट वेरी डार्क पीरियड ना, सेंचुरी वाला जो था, सेंचुरी डार्ट चल रहा था उसका. I mean, But if they you think, can- what if I Babar has think a we bad will World only Cup? nose dive if Babar is removed. जो चल रहा है वो भी नीचे जाएगा. We will only nose dive because अगर आप नोटिस करें तो अभी एक जट बने हुए हैं. जट होता है क्या होता है? Shout out to Jut and Jat. एक यूनिट बनी हुई है टीम. Yes. If you notice that. The chemistry And is I don't know insane. if people have noticed even in high pressure Pakistan India games, जो बैकिंग है ना, मैं देख रहा हूँ लड़कों में एक दूसरे को, वो जो बाबर ने करवा दिए वो जयलब करवाना, वो मैंने नहीं देखा पहले. बहुत लड़के वो ही आते थे. द वे शादाब गॉट ऋषभ पंत आउट, जो हम मैच जीते थे 152 Yep. उसमें जो प्रेशर लेस होके बॉयज फील्डिंग कर रहे थे, वो चीजें बहुत. रिजवान इज लाफिंग एंड मस्ती चल रही है. एंड नसीम शाह उसके अगले मैच में आके वो बॉल कर रहा है विराट को फ्रीलेस, और विराट को यूं देख रहा है लाइक डिड यू सी माय स्विंग. और मैंने कहा ये इन्हें प्रेशर नहीं है बॉयज में, ये चिल हुए में. This is very different from when they used to play even 6-7 years ago. Exactly. Did you notice this as well? 100%. The 152 for O wala game was, I think, the nail in the coffin where they were like, अब हम लोग इंडिया से नहीं डर रहे. Even the game that we lost against India in the World Cup final, अभी वाला, there was no regret. I mean, ये नहीं था कि यार सब कुछ खत्म हो गया. There was like, we just got outbeaten by this insane innings. We lost That's it. against a great man. No shame. No shame in that. And ये different था क्योंकि मुझे याद है 2016 के T20 वर्ल्ड कप में आप 84 पे ऑल आउट हुए हो, और उसके बाद मोहम्मद आमिर की ऐसी स्पेल जो ज़ाया हो गई ना एंड में. इफ़ यू हैड इवन 120 ऑन द बोर्ड 6 के एवरेज से पर ओवर खेलते तो गेम फंस चुका था वो. बट देयर वाज नो फाइट क्योंकि आपकी एक तो अहमद शहजाद एरा से निकले हम, अल्लाह का शुक्र है. वो अहमद शहजाद एक्स उमर अकमल. हाँ अल्लाह, वो तो मुझे नाइटमेयर्स आती हैं उस एरा की. उससे निकले तो अब हम तुम कह रहे थे ना, एक यूनिट जो बने हैं ना, उस पर बाबर का कहना है कि आई विल नॉट हैव दीज ग्रुपर्स बैक इन द टीम. नो
Hafiz, no Malik, no Umar Akmal. Goodbye. And I love that. ये मुझे बहुत ज़्यादा people call Babar Azam a very arrogant captain. And it pisses me off because 30 साल पहले इमरान खान was the same but he was the great. मुझे समझ में नहीं आता ये कंपैरिजन. इमरान खान भी अपनी 11 खिलाता था तो जो लड़के उसको खिलाने होते थे और उसके कॉन्स्टेंटली फड्डे होते थे. He was the chief selector as well as the Exactly. captain. So if Babar wants to play, ठीक है, शान मसूद का मैं भी फैन नहीं हूँ, but if Babar is believing in him, कुछ ना कुछ तो होगा. कुछ तो देखा है ना. Babar put all his chips with Iftikhar, and now Iftikhar is one of the great middle orders of Pakistan in recent times. किया ना कुछ था उसकी बैकिंग थी. जैसे मिकी आर्थर ने इसको टेस्ट मैच में बैक किया था. He was a shit show. कोई 14 इनिंग्स में कोई 23 की एवरेज थी साहब की. But when he just एक बार क्लिक हो गया, आप देख लो, he's from 23-24 की एवरेज, his average in test is 56 man. That's crazy. तो I mean कहने का ये मकसद है कि बाबर को डाउट करना is blasphemous in my opinion. यार मैं बस क्या बोलूँ, हमारे असल में ना बहुत अरसे बाद एक वो प्लेयर मिला जो हमसे संभल नहीं रहा. हाँ, it's bigger than all of us. हाँ, तो और कीड़े निकालने की तो हमारी पुरानी आदत है. ये पाकिस्तान में भी इंडिया में भी कीड़े तो निकालने हैं ना, कोई कितना भी. अगर कोई विराट और बाबर के लेवल में भी कीड़े निकाल रहा है तो आई थिंक यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड. Yeah. Shoaib Jack. मेरे तो समझ से बाहर है. एंड यार आई लव्ड हिज टेस्ट कैप्टेंसी. अब वो मिस करता हूँ मैं, वो जो एंगर है ना विराट की टेस्ट कैप्टेंसी. एंड आई सॉ दोज स्टेयर्स टू गंगुली. Yeah. डिड यू सी द मैच में? Which one are you talking about? यार वो मैच खत्म हुआ, आई थिंक LSG का कोच है ना, कोई बैटिंग कोच वगैरह है या डायरेक्टर वगैरह है गंगुली, तो लखनऊ का. Excuse me. I'm being super honest, मैं IPL follow नहीं करता. उसूलन. अच्छा. क्योंकि I don't know, the whole capitalist IPL thing really bugs me. मैं honestly PSL भी follow नहीं करता. ये हमारी hot take है कि मुझे लगता है कि PSL is not producing your best players in Pakistan. But IPL उसूलन, I think it's a great league, but I just don't watch it because why are you subjugating one country, one people against everything? मुझे नहीं समझ में आता. Same राशिद खान, अगर for example मोइन अली पाकिस्तानी हेरिटेज का है but he has a UK passport, so you're okay with that. It makes no sense to me. It's a complete hypocrisy. सिकंदर रज़ा अभी गए और वहाँ पे छा गए by the way. तो it makes no sense to me. The first IPL is still the greatest IPL of all time. इसमें आफरीदी भी थे और शोएब अख्तर की ओपनिंग स्पेल थी 4 विकेट. सोहेल तनवीर को कैसे भूल सकते हैं? पर्पल कैप. उफ. तो बॉलिंग. यस, तो दैट्स माय टेक, बट प्लीज कैरी ऑन. दैट्स व्हाई मुझे तुम्हारे जो ना IPL के पॉप प्रेफरेंसेस में समझ में नहीं आ रहे. हाँ, तो लखनऊ सुपर जायंट्स इज अ टीम. इट्स अ न्यू टीम. आई जस्ट हर्ड अबाउट दिस. दो टीम्स, आई थिंक गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, तो न्यू टीम्स हैं. तो उसमें गंगुली इज पार्ट ऑफ देयर लाइक कोचिंग स्टाफ वगैरह. आई थिंक LSG का ही है वो. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो सीन ये कि गंगुली से मैच के बाद हैंडशेक हो रहा. ही स्किप्ड, बोथ ऑफ देम स्किप्ड. दे लुक्ड इन देयर आईज और वो चले गए. वाओ. तो देयर इज बीफ बिटवीन कोहली एंड गंगुली. आप सबसे हाथ मिला रहे हो यार, सबसे, और आप दोनों ही एक दूसरे से ही नहीं मिला रहे. देयर इज समथिंग ना, इवन इफ देयर इज नॉट बीफ, देयर इज समथिंग, देयर इज सम एनमिटी. There is a lot of ego stuff in Pakistani Indian cricket. बल्कि subcontinent cricket में मैं बोलूँगा. ये समझ में नहीं आती है क्यों है. Is it because कोई इनसिक्योरिटी रह जाती है? इवन बिगर प्लेयर्स, जैसे इमाम को लास्ट 2 मैचेस बिठा दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, राइट? There was a huge controversy. I don't know why. Is there a conversation happening कि इमाम is not in the playing 11? Because that's not true. इमाम को किस किस्म की इनसिक्योरिटी है कि वो इतने क्रिप्टिक ट्वीट्स भेज रहे हैं after getting dropped? It wasn't a drop. Was it a drop? I don't think it's a drop. It wasn't a drop. There is no way Imam is not in your 11. Even if it was a drop, the man who's dropping is the same one who confides in you. Yeah. सही है, वो ही आपको अगली 4-5-6 सीरीज भी खिला देगा यार. Yeah. सही है. उसके बाद ये क्रिप्टिक ट्वीट्स वाला जो सिलसिला है, एक तो ट्विटर हैंडल छीन लो भाई इन सबसे. सबसे पता नहीं है यूज कैसे करना है यार. Yeah. मैं कहता हूँ ऐसा में थोड़ा सा सैफी भाई से सीख लो. सैफी भाई वैसे खतरनाक ट्वीट्स करते हैं. वो बहुत आखिर में किए यार उन्होंने, बहुत आखिर में जो उनका प्राइम ज्यादतियों वाला era था, वो चुपचाप रहे यार बेचारे. मॉर्निंग शोज में आके फाद मुस्तफा के साथ बैठे रहते थे, नाते पढ़ते थे, लोकल क्रिकेट खेलने, क्लब क्रिकेट खेलने. उन्होंने किसी पे इंटरव्यू नहीं किया, वो नहीं किया. मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला अपनी 100 के बाद इवेंट टेस्ट करके मैंने वो शोएब जट या कोई और था उनसे सवालात भी कर रहा है इस तरह के, वो कह रहा है, वो हंस के जवाब दे रहा. ही नोज कि ये इसलिए सवाल हो रहे थे, मैं टेढ़ा जवाब दूं, हेडलाइन बने. बट यार सैफी भाई को आप देख लें इस मामले में, बंदे के साथ कितनी ज्यादती हुई. इज़ लाइक भाई मैं अपनी क्रिकेट खेलूंगा, और वो दोबारा सिलेक्ट हुए. उनसे बस यही सवाल होता ना, आपसे पानी पिलवा दिया गया, आप तो कैप्टन. इज़ लाइक भाई सही है, हो गया, कोई बात नहीं यार, क्रिकेटर पिलाते हैं सब. सही बात है.
तो ये चीज इनसे, और ये जो ट्विटर है ना, ट्विटर हैंडल ले लो भाई इन सबसे। अच्छा, को नहीं पता क्या कब ट्वीट करना है। इमाम का भी सीन है कि ये फॉरन जो है ना ड्रेक टाइप सैड बॉय बन जाते हैं, वो फुल ट्वीटें आ रही हैं इमोशनल, और ये जैसे कुछ बच्ची ने छोड़ के भाग गई सोशल हो। मीडिया ग्रूमिंग हम सबकी नहीं है भाई इन सबसे ट्विटर हैंडल लेके इन सबके मीडिया मैनेजर्स को दो, बस दैट्स इट। कोई ट्विटर पे नहीं बॉबी आएगा। नहीं करता कभी फालतू के ट्वीट। अच्छा, बॉबी का जो है ना वो मार्केटिंग मैनेजर बहुत टाइट है यार, अच्छा, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बॉबी जब भी कोई ट्वीट करेगा ना, इवन दिस टू शैल पास थिंग सीम्ड वेरी कैलकुलेटेड टू मी, क्योंकि इतनी इंग्लिश तुमको खुद नहीं आती। उसके बाद से विराट ने उनसे ज्यादा सेंचुरीज मार दी आई तो थिंक। देख लो ये दुआएं दूसरों को देते हैं कि खुद पे लगे, ऐसा दिन आएगा, लेकिन अभी नहीं आया। लेकिन वो दिस टू शैल पास वाला सीन जो था ना, इट वाज सो नाइस, इतना होलसम मोमेंट था ना, वो ट्विटर पूरा एक्सप्लोड हो गया उसके था बाद दोनों की मीटिंग और होलसम थी। हाँ, अच्छी थी, आई लाइक्ड इट। बट कोहली इटसेल्फ, आई मीन ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बाबर इज ऑन हिज वे। Who's your greatest of all time batsman? Mine? यार, that's a has to be one of the Australians. Ponting most likely. अच्छा, I think Ponting. मेरा तो वीक है। विराट कोहली. हाँ. I have not seen one man stand against 11 like this. Yeah. Back to back innings. नहीं। लेकिन Ponting has something that none of these people have, is that he was That swag. Swag नहीं, the back-to-back World Cups as captain and the 3 World Cups under his belt and performing in every single final. That's like, Kohli does not have that. Kohli, the one thing that is a stab on his back is that he didn't win any. Any एक ICC तो जीतते tournament. बेचारा फाइनल में भी आया तो वो पाकिस्तान से पाला पड़ता था तो जो अपने प्राइम पे होती थी। yeah, तो and obviously like India was still, I say this on record, 2017 ICC Champions Trophy में India was the better team. We just Talking about 2017? yeah, ICC Champions हाँ, Trophy. वही ना, उस वाली पाकिस्तान से पाला पड़ा, वो जो सर फिर के आती है बस। कि we have nothing to lose. We have nothing to lose. All chips in there. बस। There is no way, no other time that Pakistan makes 338 or whatever they made. There is no way. But बस चल गए वही रमजान में हो गया था ना भाई। रमजान में हो गया, बात खत्म। वो नो बॉल पे वो फिर फखर जमान खड़ा आउट हो होता गए, वो 100 मतलब insane, right? Insane. फखर जमान wasn't exclusively like studied ना, Yeah. एकदम आ गया वो। एंड वो रवि अश्विन को आधी पिच पे आके वो जो कुल्हाड़े चला चला के वो जो मारता है, Ugly player but effective. बट रन आओ भाई, आ रहे। रन नो मैटर हाउ दे कम। हाँ, वो आ जाते हैं उसके। मेरा भी यही है भाई, क्लास इज गुड एज लॉन्ग एज यू आर स्कोरिंग रन्स। हाँ। आपकी क्लास का फायदा नहीं है अगर रन्स नहीं आ रहे। हाँ, वरना स्टांस तो अहमद शहजाद का भी बड़ा अच्छा था। फिर क्या हुआ? मतलब बीफ है मच Hate him so much, man. जब से उसने ये किया था ना, ये वाला, तुम्हें याद है? उसके बाद से मैंने कहा ये तो नाटक है। This guy is not playing cricket. ये कैमरे के लिए आया है। He doesn't give a shit. और वो था, और एक दफा वो स्ट्रेचर बोर्ड के चले गए थे, गर्दन में लगी थी। कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने अब्दुल रज़ाक का इंटरव्यू सुना है, कह रहा है वो अंदर गया तो खड़े हो गए उठ के, नहीं यार, बैठ के गालियां दे रहे हैं। पता नहीं किसी ने मजाक में, किसी ने जब वो उठाया ना स्ट्रेचर, तो उसने किसी ने एज अ जोक वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन करके उठा लिया, या अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर बोल दिया। तो उसने सुन लिया, अंदर गए, ये खड़े हो गए, आगे किसने बोला था, ढूंढ रहे हो उसे। अहमद शहजाद कर्स, अहमद शहजाद, उमर अकमल और द कर्स ऑन पाकिस्तानी क्रिकेट। मैं तो उनकी बुराई नहीं करूंगा, मुझे किसी ने उनके साथ वीडियो करनी पड़ सकती है। हो सकता है, हम नहीं करेंगे कभी, हम करेंगे तो उनकी लेंगे सिर्फ। यार, I think we should wrap it up. We've been talking for like an hour and a half. Let's coming back to you, because I feel like YouTube, yeah. Pakistani cricket पे we can talk forever. ये तो ऐसे ही एक worm hole है जो खुलता है तो फिर we can go back and back and back. I wanted to finish on you. तुम्हारे plans क्या हैं? Are you starting to make money from your YouTube channel? And do you think this is sustainable? Do you think, what's your 6 months, year, 3-year plan? लाइक क्रिकेट प्लान और यूट्यूब प्लान? Both. यार क्रिकेट का क्योंकि दोनों एक जॉइंट है ना तेरी से। या तो क्रिकेट का ये है कि मेरा प्राइमरी गोल तो यही है कि इसी को प्रोफेशनली परस्यू करेंगे भाई। Yeah. जो हुआ अपनी पूरी लगाएंगे ताकि कोई रिग्रेट ना हो। सही। जो डीएस की एक कोट है, व्हेन यू आर 52 and you are sitting with your kid in your car, have you listened to that? I've heard, I know what you're meaning. तो बस ये कि अपनी लगाएंगे। मैंने तो स्टार्ट बहुत लेट लिया ना, लाइक आई गॉट इनटू माय escape the matrix वाला एरा इन माय 22। मैंने स्टार्ट 3 साल पहले किया हार्ड बॉल क्रिकेट। और मुझे किसी दोस्त को यकीन नहीं आता, मैं डिस्ट्रिक्ट में कैंप में खड़ा हुआ हूँ विद दानियाल मंसूर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। एंड दानियाल मंसूर इज लाइक, आई एम द न्यू बॉय इन द कैंप ना, डिस्ट्रिक्ट में। हाँ भाई क्या खेला क्या है वो, तो बाद में मैंने कहा कब स्टार्ट, दानियाल भाई 2.5 साल पहले किया मैंने। इज लाइक वो देख रहे कि कोच ने तो नहीं सुन ली ये बात। हाँ, बेटा 12-11 साल से मतलब क्रिकेट खेल गए थे उस ग्रास, मैंने तो 2.5 साल पहले किए दानियाल भाई। वो तो 2.5 साल पहले से, तो 2.5 साल पहले यू स्टार्टेड प्लेइंग हार्ड बॉल क्रिकेट। हाँ, उससे पहले टेप बॉल वगैरह चलती थी, या वो भी नहीं? बॉल मैट्रिक तक खेली है, उसके बाद बस। 6-7 साल का गैप आ गया Yeah. यूनिवर्सिटी तक
कोई क्रिकेट नहीं, Yeah. सोचा ही नहीं बस जर्नलिज्म और आई टोल्ड यू द होल Yeah. लंबा Interesting, गैप, man. उसके बाद एकदम हार्ड बॉल, बिकॉज मेरे दिमाग में ये था यार भाई जो चीज़ पसंद है ना यार वो करके मरना है, पैसे जो कमाने थे कमा लिए, सही है, Yeah. मैं थोड़े से मैं खुश हूँ, एंड आई बिलीव इफ आई डू वट एवर आई एम डूइंग बेटर देन एवरीवन एल्स इज डूइंग, मैं उसमें बना लूंगा पैसे, आई मेक रियली गुड मनी आउट। विराट कोहली माइंडसेट, मैन. हाँ, तो बस Love मुझे रिग्रेट वाली जो चीज़ थी ना मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, हम जो रोगन पॉडकास्ट बहुत देखते हैं भाई, Oh, yeah. और हुबरमैन भाई की बहुत देखते हैं हाँ. हम। तो ये था कि हमें रिग्रेट वाला कीड़ा था, हमने कहा भाई शादी 24 का गोल था, कोई बात नहीं सर 30 में कर लेंगे 30 में नहीं करना. नहीं कर और भाई मेरे खानदान में, नो ऑफेंस टू ऑल माय कजिन्स हु आर 30+, लेकिन उनका भी ये मूड था कि हम बाहर जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम जो है ना 30-35 में शादी करेंगे. सब 29 में डाउन हुए हैं, भाई शादी करा दो, भाई शादी करा दो, क्योंकि कहने का मेरा मकसद भाई देखो मैंने 26 में शादी करी है, 25 में करी है मैंने. आई रिकमेंड दैट. अगर है कोई जिंदगी में तो लॉक करा दो, अम्मी से मिलवा दो कल, अच्छा डाउन कर दो, ठीक है, क्योंकि ये 30 वाला चक्कर जो है ना ये पुराने जमाने में चलता था. आप तो बहुत इमोशनल हो गए, मैं तो एक मिसाल दे रहा था मैं क्योंकि इस बारे में बड़ा पैशनेट हूँ मैं. शादी के बारे में। हाँ, आई थिंक स्पेशली कराची के लड़के जो ना, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इन जनरल जो मैंने देखे बड़े इमेच्योर होते हैं. इमेच्योर होते हैं, ठीक है. वो जब तक उनकी शादी नहीं होती, फॉर सम रीजन दे डोंट ग्रो अप. ये तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान का ही कल्चर है ना, मैं तो पाकिस्तान being fed by their mothers और फेड बाय देयर मदर्स, घर में मासी आती है, दे डोंट नो. इट इज टू थिंग्स, ईदर दे गेट मैरिड. आई थिंक कराची में तो ये उल्टा है, कराची के लड़के कमाने और इन चीजों में इतने फंसे हुए, आई थिंक मे बी इट्स मोर इन द पंजाब साइड, और दूसरा आप चले जाओ यार शायद फिर मेरा सर्कल इस तरीके का है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ जो भी थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर है ना, वो अभी तक अपने अब्बा से पैसे मांग रहे हैं, और अभी तक कुछ नहीं है. 26-27 साल बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार. तुम जो है ना, तुम्हारा मिडिल क्लास सर्कल होगा, हो सकता है, बस यही मसला है. ये पुल के, Did you see him take a shot at middle class boys? आई लव मिडिल क्लास पीपल, आई एम मिडिल क्लास, बट ये पुल के उस पार वाला सीन है. इस तरफ जो है ना सारे छोकरे, देयर ऑल ब्रो, अब्बा के पैसे, अब्बा से पेट्रोल के पैसे मांग रहे हैं. आई एम लाइक ब्रो, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, व्हाट इज दिस? क्योंकि जब तक मैं नहीं गया था ना कराची से, मैं भी ऐसे ही था, बट आई वाज 16, तो दैट मेक्स सेंस. सही है, But at 26, you can't be this. of course. You should be earning yourself and fixing your life. Like 26 साल की उम्र में तुम नशे कर रहे हो और तुम बैठ के, like I'm glad कि you're into cricket, ठीक है, because I feel like that is one thing that the people who are like graduating now and like getting into workforces, उनको ये realize हो रहा है कि यार यहाँ पे तो पैसे ही नहीं है. 4-4, 10-10 लाख रुपए की उनकी डिग्रीज हैं, 25,000 रुपये जो हम बात कर रहे थे बना रहे हैं. दे आर वेरी डिप्रेस्ड, एंड बिकॉज दे टुक ऑल ऑफ देयर यूथ पढ़ाई में, दे डोंट हैव द हॉबी नेचर जो तुमने, यू फाउंड इट अगेन, राइट? एक तरीके से तुम जो रोगन को या हुबरमैन को तुम दाद दे सकते हो, बट यू फाउंड योर पैशन अगेन, विच इज इनसेन, बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. वो फिर या तो 30,000 की जॉब, डेड एंड जॉब में फंस गए, और फिर वो बोलते हैं यार 35 में शादी करूंगा क्योंकि 30,000 में तो कोई लड़की नहीं देगा. मेरे तो सर्कल में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो क्रिकेट भी छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, जो भी कर रहे हैं, कि यार अब शायद अब कमाएं या ये करें. आई एम लकी इनफ कि एक तो मैं फ्रीलांसिंग में था, तो आपको पता है बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स और चीज़ें होती, तो मैंने तो दोनों चीज़ें एंजॉय की. बट ये तो है यार, you have to take a leap of faith. and बहुत अच्छे क्रिकेटर्स they drop out, not just cricketers, athletes in Pakistan, they drop out. आप देख नहीं रहे थे, आए दिन बोले होते हमें स्पॉन्सरशिप दे दो, हमें हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, हम यहाँ खेल कर आ गए. हाँ, तो ये मुझे डर लगता है यार. तो मैं इसलिए तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा प्लान क्या है फिर अगले 6-8 महीने, साल become a better cricketer. आई बिलीव आप वो हो जाऊंगा तो मुझे पिक और सिलेक्ट होने की कोई परेशानी नहीं. जस्ट बिकम बेटर क्रिकेटर योरसेल्फ एंड जस्ट रिकॉर्ड माय जर्नी. बस दैट्स इट. जस्ट टेक पीपल ऑन माय जर्नी विद मी. आर यू मेकिंग मनी फ्रॉम YouTube now? आई हैव third month है मेरी monetization. Is it sustainable money or is it just peanuts for now? For now it's peanuts, but जो फर्स्ट मंथ में थी और अब जो थर्ड मंथ में है उसमें ऑलमोस्ट डबल का फर्क है. मुझे रियलाइज हुआ ओके, एज माय ऑडियंस इज ग्रोइंग, द मनी इज ग्रोइंग. और मेरा फोकस है भी नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ. मैंने कहा यार ओके, आई लव टू थिंग्स. आई लाइक क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, एंड आई लव रिकॉर्डिंग माई सेल्फ प्लेइंग क्रिकेट. मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ और मुझे ही पैसे मिल रहे हैं. ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है. That's the dream. तो और तुम्हें मैंने देखा, because the last video I saw of yours was the kid bag दिखाया था. That was a sponsored video, was it not? That was a sponsored video. I didn't get money. But you got a kit. I got a whole kit. अच्छी किट थी. हाँ, जबरदस्त किट थी, बड़ी जबरदस्त. आज मैंने उसकी वो भी रिकॉर्ड की है, जो वीडियो आएगी बैट रिव्यू किया है मैंने.
बड़ा जबरदस्त सामान ये पॉडकास्ट बहुत बाद में आएगा बाय द वे, था यार। चलें फिर आप मेरे चैनल पे आके देख लें। 2-3 हफ्ते के बाद आएगा मोस्ट लाइकली है, लेकिन that was a good one. And he is someone who sponsored Josh Brown, the BBL prodigy. नहीं पता No, तुम्हें, but वो ऐसे नहीं ही बोल रहे हो पता। ना। हाँ, लेकिन BBL का तो मुझे पता है। एक बड़ा फेमस अभी लड़का है जिसने कारपेंटर है, मशहूर है कि अपने बैट फैट खुद बनाता है, दोस्तों के बैट फैट बनाता है और बड़े लंबे लंबे छक्के मारे हैं उसने BBL अच्छा। में आके। नहीं नहीं BBL का मुझे पता है, मुझे इस लड़के का नहीं पता। अच्छा, तो I'll look him up, he I'll look him provides bats to him, used to. How did they get in touch with you? Like email? मुझे Instagram DM किया like you, हाँ, तो मेरे DM में स्लाइड किया उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा इंटरनेशनल कंपनी है। हाँ है लाहौर बेस्ड, हाँ, बट ही प्रोवाइड्स इंटरनेशनल। I love that. मुझे ही वांट्स टू ग्रो इन कराची। लाहौर में वो बहुत डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स वगैरह को देते हैं चीजें। इट्स नॉट अ वेरी बिग कंपनी, MIPK वगैरह उनका नाम है। आई डोंट नो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, वैसे ना रखें तो अच्छा है, इस बात के मुझे पैसे मिल नहीं रहे। शायद मिल जाए। मुश्किल है उनके पास बजट बहुत टाइट चल रहा है। No, but that's the one thing that I get annoyed by Babar, but then I also understand कि सबको पेट पालना होता है, सबको पैसे बनाने होते हैं। कि I'm like, यार Babar just Kohli plays with MRF, which is an Indian tire company, which is weird still to myself, but it's Indian. He's made that into a brand. Only a few people play with MRF bats. Tendulkar famously. तेंदुलकर या ये ग्रे निकल से खेलता है। मलिक से खेल ले यार। मलिक मलिक शेर नहीं याद दे है? रहा होगा ना इतने Do you पैसे remember यार। मलिक शेर जो आफरीदी का बैट हुआ हाँ, करता था? हाँ, That was a branded bat, bro. मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेलता था सबको मलिक शेर चाहिए होता था। फेक मलिक शेर के स्टिकर्स लगाते थे ये BS के बैट्स पे। ठीक है? सर पाउंड्स मिलने हैं ना सर। हाँ, ये मसला है ना जानी, ये मसला है। आप अभी यहाँ से बोलना बहुत आसान है। I get it. That's why I don't dock him. It just frustrates me. हाँ, नहीं मैं अगर हूँगा तो मैं I'll be like अच्छा, अगर तुम्हें BS $1 लाख दे और तुम्हें ग्रे निकल्स $2 लाख दे, तुम ग्रे निकल्स पे जाओगे? लेकिन अगर BS बोले हम आपके साथ 10 साल की पार्टनरशिप करेंगे, BS शयान एक ब्रांड बनाएंगे, अरे सर लेगेसी इज व्हाट आई एम आफ्टर, तो फिर तो वहीं जाएंगे हम। कितना ग्रे निकल्स? मुझे ग्रे निकल्स वेपर खरीदने में 450 पाउंड का बैट है पहले वो खरीदने में भी कोफ्त होती है, क्योंकि एक तो गोरे को पैसे चीजें होती हैं। हो देखिए द स्टैचर दैट बाबर एंड विराट लाइक प्लेयर्स हैव अचीव्ड, मुझे नहीं लगता मनी सिर्फ उनका सोल मोटिवेटर है। तो व्हाट इज ग्रे निकल्स हो प्रोवाइडिंग? सकता है उनका उनसे देखो पाकिस्तानी ब्रांड है ना, हमें पता है पाकिस्तानी कैसे आपसे ब्रांड रीच आउट करती है, इंटरनेशनल कैसे रीच आउट करती है, आपको तो होगा एक्सपीरियंस मार्केटिंग में। तो हो सकता है उसने एक दफा सर्विस यूज कर ली हो जो HS की करता है, इज लाइक यार मैं इनसे 4 दफा थोड़ी मैसेज करूंगा बैट के लिए। सही बात है। एंड ग्रेनिकल का बंदा 4 दफा मैसेज उनको करता हो कि यार सर बैट्स रेडी हैं आपके, आप कब पिक कर रहे हैं। हाँ, शिप तो करते ये होंगे भी- मोस्ट लाइकली। ये भी होता होगा ना, तो बंदा इज लाइक यार मुझे ना दिमाग का आसानी चाहिए। Yeah, Maybe. fair enough. Who knows? Pakistani brands are very tough to work with. Who knows? I am working with one right now. No names. जब तक ये आएगा तब तक मैं काम भी कर चुका हूँ उनसे। नो नेम्स हम बार बार ऐसे बोलने से हर कोई हमें देखता है यार क्लाउड पड़ता है ना, लोगों को लगता है अच्छा। पता नहीं पेप्सी शेप्सी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। But I know it's a struggle. They are very incompetent. तो I get it. But तुम्हारी ब्रांड पार्टनरशिप अच्छी थी लेकिन। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा भाई हर साल हम आपको किट देंगे। ओह बेहतरीन। तो पहले तो मैंने कहा हर साल नॉट 6 months। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मिल रही है चुप करके ले लो। सही है, बिस्मिल्लाह। सर लेट्स शेक हैंड्स। उन्होंने कहा गुड है, वो बंदा बहुत नाइस है। हाँ, उससे मतलब बहुत वेरी वेरी नाइस। मेरी वो वीडियोस हर वीडियो पे मुझे अलग से भेजता यार ये वाली वीडियो अच्छी थी, इज वेरी नाइस मैन। तो मैंने कहा सही है। आई गॉट अनदर ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी, लेकिन फिर मैं उनसे बात हो गई थी, मैंने कहा नहीं यार लेट्स गो विद यू। सही है। That's good. इंशाल्लाह ताला तुम्हें भी न्यूबेरी शुबरी आके ग्रे निकल्स वाले बोलेंगे बड़े भाई हमारे बैट यूज कर ले। इंशाल्लाह आमीन। नहीं यार, इट्स गुड। आई एम ग्लैड दैट एक तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू केम ऑल द वे। तो यहाँ पे आना भी एक नवाजिश। सफ़र है, बट genuinely love your content and I wish you the best and we hope कि we can connect again in the future and उस वक्त तुम्हारे 100K 200K हो and इंशाल्लाह। तुम फिर हमें नखरे दिखा रहे हो यार, अरे शायद नहीं, यार नहीं नज़र भाई हम नहीं आ सकते ज़रा, आप हमारे पास आए। नहीं, but I wish you the best क्योंकि तुम्हारा genuinely content मुझे बहुत पसंद है। It sparks very fun memories of me playing in the city and at the same time the content is great. तुम्हारी personality Love shine it. करती है, all your friends are amazing characters themselves और just keep it up man, just keep it up। बहुत कम होता है कि शहर कराची में कोई अच्छा क्रिएटर मिले, वरना तो हम वो डकी भाई शकी भाई में फंसे रहते हैं। और बहुत कम होता है लिटरली, मैं genuinely I'm saying this कि you hardly get like good content creators, that's why I only watch handful of people and I'm very happy जो इस podcast को देख रहे हैं, whoever is watching this internationally, nationally, whatever it is, definitely check out Shayan's page, definitely check out his content. It's unique, it's fun and you're definitely gonna enjoy it. Means a lot. No All of problem. this means Anything a else you lot. want to plug? नहीं यार, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द सपोर्ट। 6-7 महीने में
ही हुए हैं, चैनल स्टार्ट किया और माशाल्लाह जो ग्रोथ हुई, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त, और इतना इतना होलसम मैसेज आ रहे होते हैं लोगों के यार। मुझे लोगों के मैसेज आए स्क्रीनशॉट्स, हाँ ये देखें हमने स्क्रीनशॉट लिया था बिकॉज वी न्यू यू विल ब्लो अप, ये देखिए 500 सब्सक्राइबर थे अब आपके। Yeah. Like, यार Yeah, I followed you when you had like 6.7,000 ऐसे कुछ सीन था. मैंने कहा यार बहुत होलसम है। Yeah, it's good. एंड या आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, और इंशाल्लाह कंटेंट से बेटर ही होगा। Yeah. एंड या Yeah. Well, I think that's a good place to end it. Inshallah, जब next time कराची है आप कनाडा आए तो हाँ, हम इंशाल्लाह, तो हम बैठ के दूसरी बैठक बिठाते हैं. Inshallah, next time we'll have Bashar with us as well. He would love to pick your brains because वो थोड़ा सा Canadian circuit में cricket खेलता है. He would love to interview you as well and Sure. see के यार यहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि his questions are more like Cricket based. शदीद. ठीक है कि हमारी डायनामिक यही है कि आई प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट एंड ही प्रोवाइड्स द फैक्ट्स. तो सारा डायनामिक इसी चीज़ का होता है. बट आई एम अगेन वेरी ग्रेटफुल दैट यू केम. एंड देन अगर तुम्हारा मूड है तो वी कैन गो फॉर लंच एज वेल, क्योंकि मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है. अमेजिंग यार, चले? करते हैं चलो ओके भाई. ओके. अस्सलाम वालेकुम.